All India Institute of Medical Sciences welcome you all for this stroke awareness program. I have to tell you that I am representing at this time our director of All India Institute to welcome you, because he happens to be out of AIIMS for some urgent work. So on behalf of our director as well as on behalf of the Institute, it gives me great pleasure to see that you have come and you have spared so many of your valuable time to listen to us. As I can see that a lot of people have come, and that means this program is being liked by people. This is run by Media and Protocol Division of All India Institute of Medical Sciences, and they are doing a very good job, I must say, because they take the full responsibility of advertising and getting you the information. And over the years, obviously they have reached a level of popularity that they are able to collect so many of you to come here and listen to us. So I welcome you again to this program, and I would say that I am Kameswar Prasad. I am head of neurology department, and this program Stroke is run by the neurology department, and therefore I happen to look after the stroke program as well. So I have decided this time that we should allow the people to set the agenda of one hour rather than we setting the agenda and coming to you with a prefixed notion that this is what we want to tell you. We thought, why not we ask them what they want to know from us and then take it from there. But before we open up for all of you to ask questions, I have been asked by the media division to tell you just an overview of what we are trying to achieve and what this condition stroke is. So everybody has heard the word stroke, and I'm sure in one stroke our Prime Minister has done a wonderful thing. Surgical strike. Surgical strike, that's right. So stroke word is very common. The more common than perhaps our Prime Minister's stroke is Sachin Tendulkar's stroke. Master stroke. Isn't it? Whenever you watch him, you perhaps relish seeing his, or used to relish seeing his wonderful strokes, which gives 6 runs at a time, right? But that is not the stroke word we are talking about. The stroke word we are talking about is actually not a good thing, and it leads to damage or lack of blood supply to an area of the brain, leading to some consequence depending on which area of the brain is affected. Now I feel like I have to translate it in Hindi, but before I keep doing this bilingual thing, why not I ask you how many of you will prefer that we have these deliberations mostly in Hindi? English. Okay. Any language. And how many prefer the deliberations in English? Technical terms नहीं समझ आती. So, okay, why not we mix Hindi and English? Yeah, We make it English, right? Right. So, we will do it that way. So, I was telling you, stroke क्या होता है कि जो खून की नली ब्रेन में जा रही है, खून सप्लाई करती है, हर एक जगह खून जाना जरूरी है, खून ब्रेन में भी जाना जरूरी है, और उस
खून में कहीं एक खून की नली में प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम वैसे ही होती है जो पानी की नली में होती है। आपके पानी में जो पाइप आता है उसमें दो तरह की प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? कभी कभी तो ब्लॉकेज और कभी लीकेज, राइट। तो ब्लॉकेज एंड लीकेज जैसे वो पानी के पाइप में होता है, वैसे ही इस यहाँ भी कभी ब्लॉकेज हो जाता है तो एक टाइप का स्ट्रोक होता है जिसको हम लोग ब्रेन अटैक कहते हैं, और कभी लीकेज हो जाता है तो उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो ये दोनों ही स्ट्रोक के टाइप हैं। अब कभी कभी ब्लॉकेज ड्रेनेज पाइप में हो जाता है, जिसमें ड्रेनेज पाइप को वेन्स कहते हैं, तो उसको वीनस स्ट्रोक कहते हैं। वो कम होता है, वो अधिकतर लेडीज में होता है। वो उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा चर्चा करेंगे उस पाइप की जिसमें जो ब्लड ले जाती है ब्रेन को, या ब्लॉकेज हो जाता है और लीकेज हो जाता है। दोनों में कुछ भी हो गया तो एक एरिया ब्रेन का काम करना बंद कर देता है। और एक चीज इंट्रोडक्शन में जरूर बताना जरूरी है कि इस साइड का ब्रेन, मतलब राइट साइड का ब्रेन, लेफ्ट हाथ और पैर को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड हाथ और पैर को कंट्रोल करता है। और स्पीच भी अधिकतर लोगों में लेफ्ट साइड नहीं होता है। इसलिए बहुत बार स्ट्रोक जब राइट साइड वीकनेस के साथ होता है तो स्पीच भी चला जाता है, इसलिए आदमी बोल नहीं पाता है जो बोलना चाहता है। तो ये आप याद रखिएगा। एंड हमारे ईश्वर ने जो है उस ब्रेन में डिफरेंट एरिया को डिफरेंट काम दे रखा है। कुछ तो देखने के लिए है, कुछ सुनने के लिए है, कुछ हाथ पैर के लिए है, कुछ बोलने के लिए है, कुछ सोचने के लिए है, कुछ आप समझिए कि ओरिएंटेशन के लिए है, कुछ मेमोरी के लिए है। इस तरह से अलग अलग एरिया को, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है वैसे नेचर ने बना रखा है ब्रेन को। जिस एरिया में डैमेज होगा उस एरिया का काम बंद हो जाएगा। तो कभी आपको देखने में दिक्कत होगी, कभी हाथ पैर चलाने में दिक्कत होगी, चलने में दिक्कत होगी, कभी बोलने में दिक्कत होगी। डिपेंड करेगा कि किस एरिया का ब्लड सप्लाई प्रभावित हो गया है। इसलिए स्ट्रोक में कुछ न कुछ ब्रेन का काम बाधित हो जाता है। लेकिन ये चीज जरूर याद रखना है कि ये ब्रेन से संबंधित है। टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा, एक बार ऊपर लिखा है 35-year-old बॉय सडनली गेट्स स्ट्रोक, और नीचे पढ़ के देखा तो लिखा है छाती में दर्द हो गया और उसको हार्ट अटैक हो गया। अरे उससे क्या लेना देना, स्ट्रोक तो ब्रेन से संबंधित है। इतने अच्छे अखबार में लोग लिख रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं बिटवीन स्ट्रोक एंड हार्ट। ये ब्रेन का डिजीज है और ब्रेन की बीमारी है, इसीलिए न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं इसको। अब आपके जितने भी सवाल इससे संबंधित होंगे उसको हम लोग लेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करेंगे रादर देन ये बताने के। लेकिन हम सोचते हैं कि एट द एंड ऑफ डिस्कशन ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि स्ट्रोक क्यों होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है, और होता है तो हमें क्या करना चाहिए, और होने के बाद आदमी की क्या स्थिति होती है। लेकिन मैं जैसा कहा कि अपना एजेंडा हम लोग कुछ नहीं रखना चाहते हैं। आप लोग जैसे जैसे पूछेंगे उस हिसाब से हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे। लेकिन एक मिनट, एक ही रिक्वेस्ट है हमारा कि कोई भी एक मरीज के बारे में नहीं पूछेंगे, मर्ज के बारे में पूछेंगे। मतलब किसी खास पेशेंट के बारे में, हमारा फलना था उसको ऐसा हो गया, या हमारे ये रिलेशन थे, फ्रेंड थे, उनको ऐसा ऐसा हुआ, उस मरीज के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। जिस जनरल इश्यूज जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। आप उस बीमारी के बारे में क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक केस टू केस डिस्कस नहीं करेंगे। केस टू केस डिस्कस करना हो तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के, हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी ओपीडी चलती है, उसमें आइए, दिखाइए,
आपके केस का या आपके फ्रेंड के केस का या किसी भी केस को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कुछ जनरल जानकारी लेनी है तो जनरल क्वेश्चंस होने चाहिए और इस स्ट्रोक से संबंधित होने चाहिए। तो अब हम ऐसा करेंगे कि आपके क्वेश्चंस लेंगे और हम 4 लोग यहाँ पर हैं। पहले हम चारों अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे और हम एक एक करके उसको आंसर करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, एनीथिंग एल्स यू हैव? Here in AIIMS and बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ आ गया। हमें एक्चुअली सुनाई में ये दिया था कि सब लोग यहाँ बैंक में हैं या बैंक के लाइन बाहर है। ये है इतनी ऐसे माहौल में भी आप आए हैं, बहुत धन्यवाद आप। I am Dr. Rohit Bhatia. I am a professor of neurology with special interest in stroke neurology. And thank you all for coming in like good numbers to attend this public awareness program. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर दीप्ति विभा हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। और इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए मैं भी आप लोगों का बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस व्हिच वी नीड टू डिस्कस। थोड़ा सा आवाज़ खुलवा दीजिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, बेटर वॉल्यूम कम आ रही है? ठीक है, ठीक क्लोजर। तो हिंदी में हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं उसको लकवा कहते हैं, लकवा या पक्षाघात, है ना। तो वो उस दृष्टिकोण से ही जो पूछना है आप पूछिए। शुरू करें। ये माइक तो वहाँ पे एक माइक है, माइक इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आके कर लीजिए। हेलो, यस। एक करके क्वेश्चन लेते जाते हैं, फिर उसको डील करते हैं। यस सर, आवाज़ आ रही है? हाँ, बस बंद। सर, स्ट्रोक के बाद लेफ्ट हैंड में स्ट्रोक आया तो राइट हैंड का पैरालिसिस, जैसे आपने बताया। यदि पैरालिसिस हो गया, होने के बाद उसको हम कैसे उस लेडीज या जेंट्स को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, डिटेल्स मैं सर जानना चाहूँगा। होने के बाद हमें उसको कैसे रिकवर करना है, उसके लिए जैसे हमें बताया गया फिजियोथेरेपी एक होता है, कराई जाती है। एक हम एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का हमें बताया गया, वो करवाते हैं लोग एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट। कुछ बताया गया कि वो बीमर वेस्कुलर थेरेपी होती है, जो मैग्नेटिक थेरेपी से भी इसका कोई फायदा मिलता है। तो मैं सर मेन जानना चाहता हूँ कि होने के बाद जब पैरालिसिस हो गया है तो उस आदमी को रिकवर करने के लिए हमें सब कुछ क्या करना चाहिए, उसके लिए सर आप हमें डिटेल में बताएं। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। एक और इधर से उठा देता हूँ। माइक से बोलिए तो सभी लोग सुनेंगे ना। मैं नोट करते जाता हूँ, सो दैट ये कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं। My question is, generally, let's say in Indian situation, at what age or during what age does such a stroke occur? And in terms of 1 in 1,000, how many people? का हार्ट और दिल ये अलग होता है। ब्रेन जेल के नाम से उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कोई जेल नहीं जाता, स्ट्रोक हो जाता है। तो आप एग्जामिन करते होंगे कोई स्पेशल उनके ब्रेन और हार्ट की आम आदमी से अलग होती है। तो पुलिस जेल के नाम से हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है और वो जेल नहीं जाना चाहते, हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो आपने एग्जामिन किए होंगे, उसके बारे में विस्तार से बताओ। सबसे पहले यही बताऊंगा। मेरा एक क्वेश्चन तो पहले तो दूसरे कुड़ी ने पूछ भी दिया कि प्रिवेंटिव कैसे और प्रिवेंटिव मेजर। एक छोटा सा मैंने काफ़ी पढ़ा था, सुना भी था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हार्ट स्ट्रोक जो है आ ही नहीं सकता, गारंटी दी उन्होंने।
तो मैं इसके बारे में आपके विचार जानना सर मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है, ये पैरालिसिस, लकवा और ये पक्षाघात, क्या इनमें कोई अंतर है? अंतर है तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, या तीनों चीजें सेम है? और दूसरा ये है, जैसा आपने बताया कि ये नर्व से ना ब्लॉक हो जाती है या लीकेज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में बताएं प्लीज। थैंक यू। सर सभी डॉक्टर्स के लिए गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे भी लिस्ट की बात कर लेती, ये किस कारण ऐसा हो जाता है? जैसे कोई भी आपने बताया कि मर्ज से रिलेटेड बात पूछनी है, तो इसके हम कैसे बचाव कर सकते हैं? लिस्ट में रात को नींद नहीं आना, इस तरह से हम कैसी घटनाओं से चिड़चिड़ापन हो जाना, इस तरह की क्या सिस्टम हो जाते हैं जिससे कि हम इनसे बचाव कर सकें, इसके बारे में बताएं। जैसे अभी आपने बताया कि लकवा एक स्वस्थ इंसान है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है कि वो बैठे बैठे अचानक साइलेंट अटैक पड़ गया, इसके बारे में हम कैसे बचाव करें, इन चीज़ों से हमें बताएं। ठीक है, तो आप जो है उसके बाद बीमारी है उसको क्या ठीक है। सो नाउ वी विल हैव रिस्पॉन्स। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, जब ये जितना क्वेश्चन हो चुका है उसका आंसर कर लें, उसके बाद फिर आएंगे आप। नहीं, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, फिर से आ जाओ। जितने क्वेश्चंस हैं सब चलेगी, जो है उसको बोल देना, जो है उसको बोल दे, क्या बोल रहे हैं? हम तो उसको बोला जो जितने क्वेश्चन हैं दिनेश नहीं बैठा, उसको बोल दो क्या बोला कोई ज़्यादा मिनिस्टर है ना, अभी जवाब सुन लीजिए, उसके बाद डॉक्टर ही फोन कर रहा है फंक्शन में यार, फंक्शन एक टाइम में ही होगा, किसी की वो नहीं ठेकेदार में। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो आप बोल दीजिए क्या खानी तेरी गवर्नमेंट 10 जगह कूद के जाएंगे। It's very simple that this stroke and cardiac disease are they related, and is it related basically with diabetes or not? With especially type 2 diabetes. This is what I wanted to know. Yeah, people with diabetes are more susceptible to this stroke or not? This has to be very clear to me because I am a diabetic and I wanted to know what is really the problem. ठीक है, ओके। अब थोड़ी देर आप लोग बैठ। सबसे पहले तो मैंने कहा था, आपको प्रॉमिस किया था, पॉलिटिशियंस के हार्ट और ब्रेन कैसे होते हैं, हम लोगों से क्या डिफरेंस है, उसी से शुरू करते हैं। हाँ, ये तो होता है, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती है कि एम्स को बोल देती है, साहब ये इनका आप जांच करके बताइए। ठीक है, तो टू सम अप बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ब्रेन और हार्ट जैसा हम लोगों का है वैसा ही उन लोगों का भी होता है, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, इसलिए हार्ट और ब्रेन में कोई फर्क नहीं होता। अब मैं जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिवाइड करके ऐसे बना रहा हूँ कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब लोगों को पहुँचना चाहिए कि एट व्हाट एज हाउ मेनी पीपल सफर। आप इससे शुरू करो, we'll come to all the questions one by one. ये जो रिस्क फैक्टर्स, एक्चुअली सम ऑफ द आंसर्स काफी क्वेश्चंस को कवर कर लेगी कि जो रिस्क फैक्टर्स किसको क्यों होता है, किस कारण से होता है। उसमें कुछ कारण होता है जो मॉडिफाइबल है, जो कारण होता है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है एज। जैसे जैसे एज बढ़ता है, द रिस्क ऑफ लकवा, पक्षाघात, ये जो स्ट्रोक, ये सारा एक ही है, देयर ऑल सिनोनिम्स, ऑल ऑफ देम मीन द सेम थिंग। तो ये ब्रेन अटैक या स्ट्रोक या लकवा होने की जो चांस या रिस्क बढ़ती जाती है। सो एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। सेड दैट, ये भी देखा गया कि इंडिया में ये जो स्ट्रोक्स या लकवा यंग पेशेंट्स में भी हो रहा है। ये नहीं कि खाली 70, 80 या 60 साल में हो। आजकल जैसे यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक्स हो रहा है, वैसे ही यंग पेशेंट्स में ब्रेन अटैक्स भी हो रहा है। उसकी कारण भी है, वो बाद में देते होते। तो स्ट्रोक इन यंग हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली हमारे भारत देश में है। दैट इज वन। सेकेंड, जो अदर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो है, जो रेस है, जीन्स है, एथनिसिटी है, सेक्स है, ये सब तो है ही है। उसके
बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि उसका हम कुछ कर नहीं सकते। जो बुजुर्ग है उनको हम यंग नहीं कर सकते, उनको दोबारा जवान तो हम नहीं कर सकते। पर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो है जिसके कारण ये बढ़ता है उसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। उसमें जो एज रिलेटेड हाइपरटेंशन, एज रिलेटेड डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आजकल हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रही है, स्मोकिंग तो वैसे ही बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल तो वैसे ही खराब हो रही है, स्ट्रेस तो और भी बढ़ रहा है। इसके कारण ये जो ब्लड प्रेशर डायबिटीज जैसे यंग में हो रहा है तो ऑब्वियसली स्ट्रोक्स हार्ट अटैक यंग में होता ही है। तो ये कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स भी यंग एज में भी जुड़ गई हैं। तो एज के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है ये रिस्क फैक्टर्स भी जुड़े हैं। और इंडिया में आप देखें तो रिस्क फैक्टर्स भी यंग पीपल में हो रहे हैं और एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक्स। डॉक्टर रोहित भाटिया, आप इस क्वेश्चन का इन्होंने पूछा कि ब्लॉकेज या लीकेज होता क्यों है, किस कारण हो जाता है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे आपको बताया कि दो तरह के स्ट्रोक होते हैं जो हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। एक जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जो कॉमन स्ट्रोक है, 70 to 80% लोगों को होता है, जिसमें किसी भी ब्रेन की नली में ब्लॉक होने की वजह से आगे की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। दूसरा ये है कि छोटी सी नली है वो फट जाती है और ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में, जिसको हैमरेज बोलते हैं, ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। अब इन दोनों टाइप ऑफ स्ट्रोक के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स कॉमन हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब है किस कारण से ये होगा, क्लॉट क्यों जाएगा वहां पे या क्लॉट लोकली क्यों बनेगा। सो इम्पोर्टेंट कॉज है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, मतलब हाई ब्लड प्रेशर सबसे हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है, कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर। डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर फॉर मेनी इयर्स, बहुत साल से डायबिटिक होना, स्मोकर होना, आप हैवी स्मोकिंग करते हैं, रेगुलर स्मोकर हैं, और अगर आपने छोड़ी भी है स्मोकिंग तो छोड़ने के कुछ साल के बाद आपकी नॉर्मेंसी सिस्टम में होती है। ऐसा नहीं कि आपने आज छोड़ दिया तो आपका विद इन 3 months रिस्क कम हो जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल टाइप की डाइट, और आपका एल्डरली होना, मतलब जैसे आपकी एज एडवांस होती है तो ये होता है। अब फाइनल जो चीज होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब ब्लड वेसल्स का स्लोली हार्डन होना और उसमें फैट का जमा होना। वो जब नैरो होती रहती है ब्लड वेसल तो किसी ना किसी स्टेज पे वो ब्लड वेसल नैरो हो जाती है ब्रेन के अंदर और वो एकदम से बंद हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। दूसरा यह है कि हमारी जो लार्ज ब्लड वेसल है, जो ब्लड हमारे हार्ट से लेके ब्रेन को जाती है, जिसको कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं या वर्टिब्रल आर्टरीज बोलते हैं, क्रॉनिक फैट डेपोजिशन की वजह से, एज की वजह से, हार्डनिंग की वजह से वहां पर भी क्लॉट बन जाता है और छोटा सा क्लॉट का पीस टूट कर आगे चला जाता है और ब्रेन की किसी भी नली को ब्लॉक कर देता है, जिससे स्ट्रोक हो जाता है। थर्ड इज कि आपकी हार्ट की डिजीज है, किसी भी कारण से आपको पहले बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ, आपका हार्ट मसल वीक हो गया और वो पूरी तरह ब्लड को पंप नहीं करता और कुछ ब्लड वहां पे रह जाता है और वहां पर क्लॉट बन जाता है और जैसे हार्ट पंप करता है दैट क्लॉट travels from your blood vessel, from your heart to the blood vessel और वहाँ जाके उसको ब्लॉक कर देता है। या आपकी हार्ट की वॉल्स खराब हैं, वॉल्स में कोई प्रॉब्लम है, वॉल्स ठीक नहीं है, वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी है तो क्लॉट ऊपर चला जाएगा। सो बेसिक थिंग इज कि जब भी इस्कीमिक स्ट्रोक होता है या क्लॉट वाला स्ट्रोक होता है तो या तो हार्ट से क्लॉट ऊपर जाएगा या आपकी नली में ब्लॉकेट डेवलप हो रही है उस वजह से ऊपर जाएगा, या सेम रिस्क फैक्टर से ब्रेन की नली के अंदर डायरेक्ट डिजीज हो रही है और वो नैरो हो रही है, वहां पर क्लॉट बन जाएगा और नली ब्लॉक कर देगा। जो दूसरा टाइप का स्ट्रोक है जिसको हम लोग हेमरेज बोलते हैं, वो जनरली दो तरह का हेमरेज हो सकता है। एक होता है ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सडनली ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहा, छोटी सी नली है, वो स्ट्रेस नहीं ले पाई, ब्लड प्रेशर की वजह से वीक हो गई विद टाइम, वहां पे ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, फट जाती है एंड इट कॉजेस ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन। सेकंड टाइप का होता है जो जनरली सर्जन्स डील करते हैं, उसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल एक जगह से वीक होती रहती है और वहां पे एक छोटा सा बैलून जैसा बन जाता है जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। वो जनरली यंगर पीपल में होता है इस तरह का हेमरेज,
वो फट जाता है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। सो मुख्य कारण दोनों ब्लड प्रेशर मतलब हैमरेज और इस्कीमिक स्ट्रोक मतलब क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक या ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक, द मेन रिस्क फैक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर इज हाइपरटेंशन and the other important risk factors are smoking, high cholesterol, poor lifestyle, no exercise and your age. These will together play and cause this stroke to happen. साथ में डायबिटीज वाला बता दो। डायबिटीज में तो ऐसा है कि हम लोग तो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को तो कभी चेकअप नहीं कराया होता कि आप 40 ईयर्स से ऊपर हैं, अराउंड 50 ईयर्स हैं, 60 ईयर्स हैं, तो आपने once in 6 months, एटलीस्ट once in a year आपने अपना ब्लड शुगर चेक कराया फास्टिंग। कई लोगों को पता होता है कि शुगर है बट वो उसको इग्नोर करते हैं, प्री डायबिटिक होते हैं, बॉर्डर लाइन शुगर्स होती हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं करते। सो क्रॉनिक डायबिटीज इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर योर सिस्टम्स, आई, हार्ट, किडनीज। These are 3 main affected systems if you are a bad diabetic. So अगर आप ये सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और आपको पता है कि आप डायबिटिक हैं, तो ये सारे प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स हैं। You can stop smoking, you can take care of your blood pressure, you can take care of your diet, you can optimize your diabetic control, you can take care of your exercise. So ये प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पूछा कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ये चीज मैं डॉक्टर दीप्ति से चाहूंगा कि बताएं कि कैसे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने पूछा कि बचाव का आप विस्तार से बताएं, तो बचाव पे प्रकाश डालें। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बचाव के लिए हमें पता है कि रिस्क है, तो हमें रिस्क से ही बचना है। बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स का विवरण दिया गया है जिससे हम बच नहीं सकते, जैसे कि एज है। एज इंक्रीज होती जाएगी टाइम टू टाइम, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं फोकस करूंगी उन चीजों पर जिनके लिए बचाया जा सकता है। उनमें से मुख्य है ब्लड प्रेशर और शुगर। जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है वो तो इलाज करे ही नहीं, लेकिन आप लोगों में से कितनों ने अभी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया है या लगातार चेक कराते रहते हैं या अपना ब्लड शुगर रूटीन चेक कराते रहते हैं? ऐसा नहीं होता है, काफी लोग ऐसा नहीं करते। और पहली बार जब लकवा होता है तब पता चलता है कि हमारा तो शुगर भी बढ़ा हुआ था, हमारा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, पर हमने कभी चेक नहीं कराया। तो बचने का सबसे आसान और असरदार उपाय है कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर इनका नियमित रूप से 3-6 महीने पे एटलीस्ट 40 ईयर्स एंड अबव को चेक कराते रहना चाहिए। एक ये चीज। दूसरी कि जिनके परिवार में ऑलरेडी किसी को लकवा हो चुका है, जिनके माता पिता को पहले लकवा हुआ है या भाई बहनों में है और जिसमें स्पेशली यंग एज पे हुआ है, उनको और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए और क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। उसके अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर के अलावा और जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका हम चेक कर सकते हैं, उसमें एक ऑफ कोर्स जेनेटिक रिस्क फैक्टर है, आपको और क्लोज मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को हुआ है। तीसरी चीज है स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल। स्मोकिंग ना ही सिर्फ ब्रेन के लिए नुकसानदायक है, वो बहुत सारे और भी उसके दुष्प्रभाव हैं, फेफड़ों पर हैं, हार्ट पर हैं और ब्रेन पे तो है ही। तो स्मोकिंग शुड बी स्टॉप। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। स्पेशली जो हम यंग स्ट्रोक देख रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, शुगर भी ठीक होता है, लेकिन वो हेवीली स्मोक कर रहे होते हैं और उनको यंग एज पे स्ट्रोक हो जाता है। उसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल से स्पेशली जो नस फटने वाली लीकेज वाला या ब्लड हैमरेज है, उसका चांस ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हम आसानी से लकवे से बच सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो शायद किसी हमारे ऑडियंस ने पूछी थी कि लकवा, पक्षाघात और अधरंग, ये सारी एक ही चीजें हैं, ये सारे एक ही शब्द हैं, अलग अलग शब्द बनाए गए हैं एक चीज को डिनोट करने के लिए। तो इस तरीके से हम लकवे से बच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको लगता होगा कि भाई मेरे तो ब्लड शुगर भी नहीं था, मेरे ब्लड प्रेशर भी ठीक था, मैं तो योगा भी करता था, मेरे परिवार में भी किसी को लकवा नहीं हुआ है, मेरा वजन भी ठीक है, फिर भी मुझे स्ट्रोक हो गया। तो ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो मेजर फ्रैक्शन है स्ट्रोक का वो प्रिवेंटेबल है। और दो आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर अगर जैसे किसी को हो गया, राइट, तो सबसे
सबसे पहले तो बात है कि आदमी को समझ आनी चाहिए कि हमको स्ट्रोक हो गया। वो बहुत बार लोगों को ये एहसास नहीं हो पाता है, ये चीज़ जो है वो चूक कर जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट ये है जो हम बोलते हैं कि कभी भी आपको बोलने में, देखने में, चलने में, फिरने में, यही सब तो आदमी का रोजमर्रा का काम है। कभी भी अगर कभी अचानक डिस्टरबेंस हो गया और फिर थोड़ी देर में ठीक हो गया, तो आपको जो है समझिए कि नेचर वार्निंग दे रहा है। इसको हम लोग वार्निंग अटैक करते हैं। तो कभी भी, मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, देखने में, बोलने में, चलने फिरने में, हाथ को यूज करने में, तो हाथ पैर चलना फिरना बोलना देखना, अचानक कभी आपको इसमें बाधा आ जाए, जो अगर थोड़ी देर में ठीक हो जाए, ये वार्निंग अटैक था लकवा का। आपको शीघ्रातिशीघ्र, मतलब उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्लीस्ट पॉसिबल, डॉक्टर से मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा है। क्योंकि अच्छा मिलिए तो एक चीज आप जानना जरूरी है कि आंख से अचानक रोशनी चली जाती है, 15 मिनट में ठीक हो जाती है, 10 मिनट में ठीक हो जाती है, तो लोग आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं। जाएगा ही, जनरल पब्लिक को क्या पता, ये अगर जब तक ये चीज ना हुई हो तो आप भी जाएंगे, सीधे पहले आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब कल अचानक रोशनी चली गई थी और ठीक हो गया था, लेकिन मैं डर गया, थोड़ा देख लीजिए कुछ है तो नहीं। आंख का डॉक्टर आपको बोलेगा कि अरे आपका देख लिया, हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप जाइए। नहीं, आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, क्योंकि ये तो क्लॉट गया था, एक कहीं फंस गया था, वो आंख के खून की नली में गया था। क्योंकि हार्ट धक धक पंप मारता रहता है, तो उसमें पुश होता 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 खिसकता गया, टूट गया, बिखर गया, साफ हो गया, आपकी रोशनी आ गई। लेकिन वो क्लॉट कहाँ से आया था, जैसा डॉक्टर भाटिया ने बताया, हार्ट से आया था कि आर्टरी से आया था, वो न्यूरोलॉजिस्ट करके बताएगा आपको। तो अगर आप चले भी गए, आए के डॉक्टर के पास और बोला कि सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद न्यूरो के पास जाइए। तो ये चीज जो है वो तो वार्निंग अटैक को पहचानने के लिए है। लेकिन किसी को बिना 15% कोई वार्निंग होती है, अगर बिना वार्निंग के ही या वार्निंग के बाद भी आपने नेग्लेक्ट किया, इसलिए अटैक हो गया, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी हो सके सही जगह पे और शीघ्रातिशीघ्र वही अर्लीस्ट पॉसिबल पहुंचिए। सही जगह कौन है? सही जगह वो है जहां कम से कम एक सीटी स्कैन है, और उससे भी अच्छा अगर है, हम लोग कहते हैं कैथ लैब है, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हम लोगों ने स्टडी की थी, लोग चले गए डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ने वो ड्रिप लगा करके और रख लिया, बोला कि हाँ जी चलो ये पानी चढ़ा देते हैं, हो सकता है ठीक हो जाएगा, और उसमें टाइम वेस्ट हो गया। आपको ये जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं, उधर जा करके ड्रिप लगवाने से ठीक नहीं होने वाला। आप समझ रहे हैं कि जो ब्लॉकेज वाला है वो क्लॉट हो गया है, क्लॉट हो गया है, क्लॉट को निकालना पड़ेगा, तो वो बड़े अस्पतालों में ही हो सकता है, या नहीं तो क्लॉट को घुलाना पड़ेगा, वो भी बड़े अस्पतालों में ही हो सकता है। इसलिए आपको जाना चाहिए वहां जहां तो आदमी ट्यूब डाल करके वो थाई के पास से डालते हैं, ले जा करके खून को, क्लॉट को खींच लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। या नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तो क्लॉट एक केमिकल होता है, उस केमिकल से मेडिसिन होता है, इंजेक्शन से उसको घुला देते हैं, तो खुल जाएगा। खून की नली अगर खुल जाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जल्दी से जल्दी पहुंचिए, सर्टेनली 4 घंटा के पहले पहुंचिए। 3 घंटा के अंदर देने से सबसे ज्यादा फायदा होता है वो घुलाने वाली दवा, और जो क्लॉट निकालते भी हैं वो भी हम लोग 6 घंटा के अंदर करें तो फायदा करेगा, नहीं तो उसके बाद फिर बहुत डैमेज हो चुका होगा। ये सब के बाद भी जो चीज डॉक्टर रोहित भाटिया ने बताया, डॉक्टर दीप्ति ने बताया, उसके बाद भी, स्ट्रोक होने के बाद भी शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, स्मोकिंग का बंद करना, ये सब कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, ये सब उसके बाद भी जरूरी है। और जो बोल रहे थे कि क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, बहुत रिकवरी के लिए, तो जब एक एक्यूट स्टेज खत्म हो जाता है या आप दुर्भाग्य से 6 घंटे के बाद पहुंचते हैं, तो फिर आपको
जनरली यही सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा। अगर आपके ब्रेन को देखा जाएगा, अंदर प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, प्रेशर बहुत बढ़ेगा तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी आपके शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके फीवर को या इन्फेक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए कुछ दिन तक अस्पताल में रह करके फीवर, इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल ये सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ साथ फिजियोथेरेपी शुरू हो जानी चाहिए, डे 1 से शुरू हो जानी चाहिए। इन सब चीजों को करने से सभी तो नहीं, लेकिन कम से कम आप समझ सकते हैं कि 50% लोग रिकवर कर जाते हैं। कुछ लोगों का हाथ में असर रह जाता है, पैर में असर रह जाता है। तो फर्दर और भी कई तरीके हैं, जैसे कि आप जो पूछ रहे थे उन्होंने बताया मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में। मैग्नेटिक ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसकी भी अभी खैर आप यूँ समझ सकते हैं कि अध्ययन हो ही रहे हैं, हमारे यहाँ भी अध्ययन हो रहा है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी वो है। दूसरी पॉसिबिलिटी म्यूजिक थेरेपी भी है। वो कुछ लोग जो है तरह तरह के रोबोटिक्स यूज करते हैं। कई उसके ऐसे तरीके हैं जिससे कि हाथ का फंक्शन, पैर का फंक्शन लाने की कोशिश की जाती है, और सभी कुछ करने के बाद उम्मीद की जाती है कि आप जो काम करते थे उसमें लौट आएंगे। चाहे वो मैग्नेटिक थेरेपी करना हो, रोबोटिक थेरेपी करना हो, फिजियोथेरेपी करना हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना हो, ये सारी चीजें उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए है। अल्टीमेटली एम है कि आप अपने काम में वापस आ जाएं। लेकिन एक चीज बताना जरूरी है कि सब कुछ करने के बावजूद और सारी सुविधा होने के बावजूद सिर्फ 50% पेशेंट्स और आप कहिए कि हैं जो कि रिटर्न टू वर्क हो सकते हैं। वो भी मैं थोड़ा सा बढ़ा के बोल रहा हूँ, आपको ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ। ऐसे आज से जब आप कहिए कुछ साल पहले तक हम बोलते थे 1/3 का तो डेथ हो जाता है, 1/3 रिकवर करते हैं, मतलब हम 33% बोलते थे, अब बोल रहे हैं 40-50%, क्योंकि थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है ट्रीटमेंट में। लेकिन उसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला 1/3 का डेथ हो जाता है, 1/3 डिसेबल्ड हो जाते हैं, डिसेबल्ड 1/3 रिकवर कर जाते हैं। ये अभी भी स्थिति है। इसलिए सब कुछ के बावजूद, अरे मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि यूएसए में कोई जाएंगे तो हमारे ऐसे पेशेंट हैं सारा कुछ यहाँ करा के फिर यूएसए चले गए, यूएसए में सब कुछ कराया, यूरोप चले गए, वहां हर जगह घूमे, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। तो मैं सिर्फ ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आप अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना छोड़ दीजिए और हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जैसा डॉक्टर दीप्ति ने बताया वो उसके हिसाब से हम तो बराबर बोलते हैं 4/4 या 4x4, 4 हेल्थ, 4 जो इन्होंने बताया कंडीशंस, बीमारी, हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज, हार्ट का बीमारी हो तो भी उसको ठीक करना जरूरी है। लेकिन 4 चीजें लाइफ स्टाइल से संबंधित हैं जो कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। क्या? नंबर 1 हम कहते हैं खान पान, तो उसके बारे में आपने पूछा था, आएंगे उस पर, लेकिन खान पान एक चीज है लाइफ स्टाइल से। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज रेगुलर करना। और पान हम जब कहते हैं ना, पान मतलब पीना, तो पीना में दोनों चीज रखते हैं, सिगरेट पीना और शराब पीना। सिगरेट पीना नहीं चाहिए, शराब जो है वो भी कम से कम एक्सेस नहीं करना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद हम कहते हैं कि डाइट आपने कंट्रोल कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, स्मोकिंग ये भी तो लाइफ स्टाइल से संबंधित है, वो आपको कोई जबरदस्ती तो करता नहीं है कि आप पीजिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए ताकि वेट ठीक रहे, आपका वेट को ठीक रखिए। और अपने खाने पीने में जो है इतना हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने पूछा था इस सवाल को, सिर्फ इतना बता दें कि नमक कम खाना है। कैसे नमक कम खाएं? सीनियर सिटीजन है, टेबल पे सॉल्ट मत रखिए, जो खाने में बना है उतना ही लीजिए, और अपने घर में बताइए कि हमारे लिए कम नमक का खाना बनना चाहिए। कम नमक का क्या बनेगा? सब लोग नाराज होंगे, बोलेगा कम नमक का मेरा निकाल दो, आप लोग फिर नमक डाल के खा लेना, या कम नमक का बनाओ, हम जिसको डालना है ऊपर से डाल के खा लेना, लेकिन नमक कम पड़ना चाहिए।
और आप आदत अगर डालेंगे तो ऐसा है कि हमने कम नमक की आदत डाली है, तो एक बार मैं पूरा खाना खा गया, फिर हमारे गेस्ट आए थे बाद में बैठे तो बोले अरे आपने डॉक्टर साहब पूछा ही नहीं। बोले क्या? अरे इसमें तो नमक ही नहीं पड़ा है। मैंने कहा हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इस तरह से टेस्ट को आप डेवलप कर सकते हैं कि नमक हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमक कम कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये जितना ज्यादा ले सके अच्छा है। लेकिन हम लोग कहते हैं कम से कम फ्रूट्स 4-5 सर्विंग्स तो लेना ही चाहिए पर डे। इस पे ज्यादा जोर दीजिए। सीजनल फ्रूट्स, ये नहीं कह रहे कि जो सीजनल नहीं है उसको भी, फ्रूट्स जितना ज्यादा खा सके खाइए, और वेजिटेबल्स जो है ग्रीन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा आलू पे नहीं, ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स पे ध्यान दीजिए। ये चीज तो कोई भी कर सकता है। इतना होने के बावजूद जिनको शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है उनको तो और भी सावधानी रखनी पड़ेगी, वो डाइटिशियन के पास जा करके और लेना पड़ेगा आपको। सारी चीजें बाजार की नमकीन बंद कर देनी चाहिए। बाजार की कोई भी नमकीन, कोई भी प्रिजर्व फूड उसमें बहुत नमक होता है, वो बंद कर दीजिए। बटर और घी बंद कर दीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। अपने रोटी खाइए, उसमें ऊपर से घी लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। और मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैं बाहर गया तो ना तो जैम लगा रहा हूँ मैं, ना बटर लगा रहा हूँ, तो बार बार जो है वो वेटर आके बोल रहा है कि साहब ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। हमें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। वो तो बिल्कुल अचंभित सा हो गया, कैसे आदमी खा सकता है ब्रेड बिना बटर के, बिना जैम के, बिना कुछ लगाए? हमने खाया वैसे ही, क्या फर्क पड़ता है? तो आप आदत डालेंगे तो हो जाएगा। खाने पीने में वो सब डालने की जरूरत नहीं होती। शुगर कम कर दीजिए। ऐसे भी डायबिटीज नहीं है उसको भी हम नहीं लेते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा डॉक्टर साहब आपको शुगर है क्या? नहीं, शुगर नहीं है तो क्या हुआ? शुगर कम खाते हैं तो क्या हुआ? तो शुगर भी कम करना चाहिए। जिसको डायबिटीज नहीं है उसके लिए भी बोल रहे हैं कि शुगर को जो है आप कंट्रोल कीजिए। नहीं है डायबिटीज तब भी फर्क थोड़ा, एक मीठा आपने ले लिया, जो हमारी डायटिशियन भी बताती है कि एक रसगुल्ला बिना रस के खाइए। ठीक है, रसगुल्ला से सारा रस निकाल करके। और हमारे एक दोस्त हैं वो तो उसको धो देते हैं पानी से। ठीक है, पानी लिया, उसको रसगुल्ला पर डाला, रसगुल्ला का समूचा रस निकाला, फिर ऊपर से पानी डाल दिया, फिर उसको चम्मच से दबाया, फिर पानी निकाल दिया, उसको पूरा उसको जो है रस लेस कर देते हैं। फिर भी वो आप जानते ही हैं कि वो स्पंजी रहता है, तो ठीक है अपना सेफ रहता है, उस तरह का खा लेते हैं। थोड़ा मीठा का हो गया उनको। इस तरह से डाइटिशियन भी अलाउ करती है कि एक रसगुल्ला आप ले सकते हैं और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, अभी रिपीट क्वेश्चन अब हम ऐसा कर रहा, मैं रिपीट नहीं कर रहा सर। मेरा जो क्वेश्चन था कि पैरालिसिस होने के बाद आप हमें गाइड करें कि उसको ठीक करने से। मेरे साथ 2 लोग यहाँ आए हैं। हाँ, वो लोग ज्यादा आए हैं जिनको तकलीफ हो चुकी है, और जिनको हो चुकी है। अरे मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। नहीं, ये मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। उनको ठीक करने के लिए हमें बताइए कि हम कैसे उनको ठीक करने के लिए क्या करें। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी बहुत वीक हो जाता है, उसकी सेहत बहुत कमजोर हो जाती है। नहीं, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन को। ठीक करने के लिए भी हम क्या करें उसकी सेहत? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके, लेकिन आप बैठिए मैं बताता हूँ उसको। किसी को हो गया है तो वही तो बताया। सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज कीजिए। नंबर 2, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए। नंबर 3, डॉक्टर उचित समझेगा तो आपके क्लॉट रिमूवल कर देगा। नंबर 4, वो नहीं हुआ तो क्लॉट का डिजोल्व कर देगा। वो भी नहीं हुआ तो नंबर 5, वो आपको एडमिट करके और आपका प्रेशर वगैरह ब्रेन का देखेगा, अगर जरूरी होगी तो सर्जरी करा देगा। नंबर 5, इन्फेक्शन, शुगर, बीपी ये सब को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वो आपको फिजियोथेरेपी करा देगा। उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएगा। उसके बाद भी नहीं होगा, जरूरत होगी स्पीच थेरेपी कराएगा। उसके बाद भी नहीं होगा, आपको मैग्नेटिक थेरेपी कराएगा। उसके बाद भी नहीं होगा, म्यूजिक थेरेपी कराएगा। जहां ठीक हो जाएगा वहां आदमी रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो ये सभी को सभी चीज की जरूरत नहीं होती। वो भी नहीं होगा तो उसके बाद मिरर थेरेपी होता है, वो कराएगा। वो भी नहीं होता। ये सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो यहाँ पे हम डिटेल में बताने के लिए नहीं आए हैं। ये सब आप नाम सुन लीजिए, डॉक्टर जो उचित समझेगा वो करेगा और उनको कोशिश करेगा कि बैक टू नॉर्मल आ जाए।
थेरेपी जो है वो तो हमने गिना दिया, 10 स्टेप्स हैं, वो सारे हमने कवर कर लिए अपने टॉक में। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पब्लिक को ये जानना जरूरी है कि हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा ये कह करके सब छोड़ दीजिए सब कुछ। ब्लड प्रेशर भी नहीं देखिए और शुगर भी कंट्रोल नहीं कीजिए और जो मन उसको खाइए तो नहीं चलेगा। हमारा कहने का मतलब ये है, और हम लोग सभी कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं 100% ठीक करने का, लेकिन 1/3 से लेकर 40% तक ही होते हैं ठीक। आप कोशिश कीजिए कि हो ही ना, स्ट्रोक ना हो उसकी कोशिश कीजिए। उस पर ज्यादा जोर हमें देना है, आपकी बात पे ज्यादा जोर नहीं देना है हमें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं एक्सेप्ट 2 क्वेश्चन जो अभी मैं देने जा रहा हूं, हमारे कलीग्स इसका बताएंगे। ये एंजियोप्लास्टी से संबंधित है, एंजियोप्लास्टी से संबंधित है। इस क्वेश्चन को डॉक्टर पद्मा बताएंगी, और एक और क्वेश्चन है वो फिर डॉक्टर भाटिया। अच्छा, ये जो है वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो एक होता है कि जो मेन खून की नली है जो ब्रेन को सप्लाई करती है, कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। जैसे हार्ट अटैक में आपको पता है ना, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है तो आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं। कई वेसल्स ब्लॉक है तो कैबेज या बाईपास ग्राफ्ट बनाते हैं, बाईपास सर्जरी होती है, आपको पता है ना। सेम थिंग ब्रेन में है, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई की नली अगर एक बंद हो गया नेक में, जो हमारे जो गर्दन में वो जो एक्सेसिबल है उसको ओपन कर सकते हैं, बलून डाल के ओपन कर सकते हैं, उसको एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर ये बलून नहीं है तो दूसरी तरीका है एंडार्ट्रेक्टमी, सर्जरी के जरिया भी छोटी सी सर्जरी है, ओपन करके जो भी ब्लॉक है उसको निकाल सकते हैं ताकि खून की रफ्तार को दोबारा अच्छी तरह चालू कर सकते हैं। दिस विल प्रिवेंट अनदर अटैक फ्रॉम हैपनिंग। और ये प्रिवेंशन इतनी महत्वपूर्ण है, 70% रिडक्शन कर देती है अगर ये चीज है और इसको हम निकाल सकते हैं। दैट इज अबाउट द एंजियोप्लास्टी, ऑलमोस्ट 70% रिडक्शन इफ देयर इज अ ब्लॉक, वो ब्लॉक को निकालना बहुत जरूरी होती है। आप सर आप आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि रेस्टोरेशन की कैसे रिकवरी पूरी तरह हो। जैसे प्रोफेसर प्रसाद ने बताया, स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरवेंशंस अवेलेबल है उसमें। जैसे अगर घर पे अगर आपको करना है, जैसे मरीज लकवा हो गया, डिसेबल हो गया, घर वापस आ गया, तो बहुत लोग आ जाते हैं वापस। उनमें 2 चीजें कि दोबारा लकवा ना हो, एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ हो सकती है, रोशनी जा सकती, बोली जा सकती, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, और वो परसेंटेज काफी ज्यादा है। इसीलिए रिस्क फैक्टर कंट्रोल, और अगर खून की नली ब्लॉक हुआ तो खून पतले करने वाली दवाई वो ऑलमोस्ट जिंदगी भर लेना पड़ता है, वो तो मैं जनरली बता रही हूँ। दूसरी है को डिसेबिलिटी को क्या करें, उसमें जो फिजियोथेरेपी ब्रॉड जो होता है, एक तो फिजियोथेरेपिस्ट आके सिखाएंगे, दूसरी हम घर पे भी उनकी अप्लायंसेस वगैरह इस तरह करना है ताकि वो सारा कुछ खुद कर सके। तो उसमें एक तरीका होता है कि आपकी जो नॉर्मल हाथ उसको वो बांध दे देते हैं, ताकि आपको जरूरत पड़ता है कि आपकी दूसरी हाथ से ही जाके कप उठाए, स्पून उठाए, हालांकि वो 1 घंटा हो, हालांकि वो 2 घंटे हो। कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी वो घर पे ही कर सकते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी भी बहुत महंगा है। आप एक बार बुलाएं वो 200 रुपए लेगा 1 घंटे के लिए। सो लॉट ऑफ इट यू हैव टू ऑल्सो लर्न टू डू इट। तो अप्लायंसेस ऐसे बनाए और ऐसे कॉन्फिडेंस ले ताकि वो जो डिसेबल्ड जो है उसी से वो करें। तो वो उनकी जो आप बहुत हौसला देना पड़ता है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क बट करनी पड़ती है। और मैक्सिमम रिकवरी भी पहले कुछ महीने में होती है। जैसे अगर ये सारा चीज तुरंत हम शुरू कर दें तो ये जो 2 से 6 महीने के अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है। ये सब हम छोड़ दिया, कंट्रैक्चर हो गया, बहुत स्टिफनेस हो गया, ऐसे हो गया, उसके बाद हम फिजियोथेरेपी शुरू करें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो पाती। और बाकी भी होता है, ये जो स्पास्टिसिटी के लिए कुछ मेडिसिन है, कुछ कुछ इंजेक्शंस कुछ लोग देते हैं, पर ये सब आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट फिजिशियन के ऊपर आप छोड़ दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज ये होता है कि अगर लकवा हो गया, डिसेबल हो गया तो छोड़ना नहीं। कुछ ना कुछ तरीके है
जिस कहीं स्टेज में भी अपना सकते ताकि वो दोबारा यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सकते। एंड कॉग्निशन भी, उनकी मेंटल मेकअप अलग हो जाती है, पर्सनालिटी चेंज होता है, डिप्रेस हो जाता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, एग्रेशन हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। अगर ये चीज आ रहा है, हम इसको वी कैन पिक अप दोस थिंग्स, इवन दोस कैन बी मैनेज्ड। और अगर डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन की दवाई दे दें, मेमोरी की प्रॉब्लम, वैस्कुलर कॉग्निटिव डिमेंशियास होता है, उसका भी तरीके अप्लाई करना। यू शुड बी अवेयर कि ये सब होता है, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, the person is not the same, but फिर भी we should be able to manage that. फायदा करता है And आयुर्वेदिक में है, एक्यूपंक्चर है। एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, स्टेम सेल्स का हमारे पास एवरीडे आते रहते हैं पेशेंट, साहब स्टेम सेल कर दो, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि एम्स ने, हम लोगों ने स्टेम सेल पे कम से कम 8-10 साल रिसर्च किया है, एक खास टाइप के स्टेम सेल पे, सारे स्टेम सेल पे नहीं, जो कि पेशेंट के बॉडी से ही लेकर के देते हैं। लेकिन शुरू में किया तो लगा कि अरे पेशेंट तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन साइंस वैसे नहीं बढ़ता है। साइंस के लिए जरूरी होता है कि आप 50% को दें और 50% को ना दें, और दोनों को कंपेयर करें। और अगर आप देखते हैं कि जिसको दिया उसमें बेटर रिकवरी है, बाकी सब चीजें सेम कीजिए, लेकिन एक ग्रुप को स्टेम सेल दीजिए, एक को नहीं दीजिए। दोनों में फिर कंपैरिजन से आप अगर देखेंगे कि स्टेम सेल ग्रुप बेटर है या बेटर रिकवरी है, तभी आप समझेंगे कि स्टेम सेल काम करता है। ये स्टैंडर्ड तरीका है साइंस का। वो जब हमने किया तो देखा कि सभी पेशेंट रिकवर किए या इम्प्रूव किए, और स्पीड ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसको स्टेम सेल नहीं दिया उसका भी वैसा ही था जैसा स्टेम सेल वाले का था। ये जो है ना वर्ल्ड में ये पहली स्टडी है उस तरह की जो हम लोगों ने किया, वो अमेरिकन जर्नल में पब्लिश्ड भी है। तो ये चीज आप समझिए, साइंस में ऐसे कोई चीज, इसीलिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप बार बार, अभी तक कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं है जो एस्टेब्लिश किया है कि किसी भी टाइप का स्टेम सेल इसमें काम करता है। अब स्टेम सेल्स को डिफरेंट तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन बताने का पर्पस मेरा एक ये भी था कि बहुत तरह के लोग आएंगे जो बोलेंगे कि हमने साहब हम ठीक कर दिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किया, ठीक कर दिया। आप लॉ स्ट्रोक के मरीज को लोग ढो के ले जाते हैं, हम ठीक कर देंगे जड़ी बूटी से, ये से वो से। ये सारे क्लेम्स जो हैं वो हम तभी मानते हैं जब कोई कंपैरेटिव स्टडी करके बताए, जैसा हमने स्टेम सेल के कार्य किया कि एक ग्रुप को दिया, एक ग्रुप को नहीं दिया। अगर जिसको दिया वो बेटर रिकवर किया, तब हम मानते हैं कि हाँ ये काम करता है। अदरवाइज हम इस चीज को नहीं मानते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से 1000 फायदे हो सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्ट्रोक को ठीक कर देता है, ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। इसलिए जो एक आदमी पूछे थे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है, आपके बीपी को ठीक कर सकता है, आपके डायबिटीज को बेटर कंट्रोल कर सकता है, प्रिवेंशन में काम आ सकता है। और वो हम तो खुद करते हैं और लोगों को कहते भी कि करो, लेकिन ये आप कहेंगे कि स्ट्रोक हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, वो चीज साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो ये सारी चीज कवर हो गए हैं। एक आदमी जो पूछे थे माइंड, एंजाइटी, टेंशन, स्लीपलेसनेस, हंगर, ये सब जो होता है, तो एक तो संक्षेप में मैं ये बताऊं कि अगर बिना स्ट्रोक के, स्ट्रोक हुआ नहीं है और ये सब सिम्टम हो रहे हैं, तो ये साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाली चीज है। अगर स्ट्रोक हो गया उसके बाद इस तरह की बात हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि चूंकि डिसेबिलिटी रहती है तो आदमी सोच करके टेंशन में आ जाता है, एंग्जस हो जाता है, हाथ काम नहीं कर रहा है पूरा, बच्चे अभी शादी नहीं हुई है, कैसे करेंगे, तो वो जो है डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस समय हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अब ये पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है। ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट्स जो हैं स्ट्रोक के बाद चले जाते हैं डिप्रेशन में, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर ठीक हो जाता है, काफी आत्मविश्वास आ जाता है। काफी लोग जो है वो महसूस करने लगते हैं हाँ अब नॉर्मल हो गए हैं या हो रहे हैं। तो
उसका इलाज करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्ट्रोक नहीं हुआ है और ऐसा हो रहा है तो आप जाइए साइकेट्रिस्ट के पास, हो सकता है डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, जो भी है वो लोग बताएंगे। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे और कलीग्स हैं उनको देंगे। आप शुरू करें। एक आदमी सोरियासिस का पूछ रहे थे, सोरियासिस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है स्ट्रोक का, ठीक है? अच्छा, अब और क्वेश्चंस ले लेते हैं, तब फिर बताइए, हम नोट करते जाते हैं, फिर एक राउंड लेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनको बाईपास हो चुकी है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उनका एएफ का सिचुएशन है, ऐसे में क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए? क्या एएफ एट्रियल फिब्रिलेशन? जी ठीक। My question two questions basically. One is, बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि अखरोट की शक्ल ब्रेन जैसी होती है। किसकी? अखरोट वॉलनट। तो दे यूज्ड टू से कि अखरोट खाओ उससे दिमाग ठीक रहता है। दूसरी चीज ये कि जैसे आपने कहा फिजिकल एक्सरसाइज इज गुड, वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर। Now we can do physical exercise by walking, jogging, going on a treadmill in a gym and all that. But is there any need, and if at all it is there, what do you do to exercise the brain? मेरे 2 पॉइंट्स हैं। एक तो वो जो आपका डूज एंड डोंट्स का स्लाइड आपने दिखाया है, वी कैन रीड दैट फ्रॉम ए डिस्टेंस। सॉरी, बड़ा करवा दीजिए थोड़ा। दैट स्लाइड को बड़ा करवा दें। डूज एंड डोंट्स वी कैन रीड फ्रॉम ए डिस्टेंस। वो बड़ा हो सकता है जी, बड़ा कर देते हैं। नंबर 6 ठीक। नंबर 2 आपने बताया है कि नमक कम खाना चाहिए। अगर नमक का लेवल 136 से डाउन हो जाए तो क्या उससे भी स्ट्रोक हो सकता है? मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, जवाब दूंगा बाद में। नहीं, नमक लेवल अगर 136 से डाउन हो जाए, समझ गया, क्वेश्चन नोट कर 128, 125 कुछ हो जाए, क्या उससे भी स्ट्रोक हो सकता है? नोट कर लिया, अभी आएंगे उस पर क्वेश्चन पे। ठीक है, बादाम अखरोट खाने से सर ब्रेन और हार्ट ठीक रहेगा। वो नोट कर लिया ना, अभी आएंगे उस पे एक एक करके, हम सब नोट करते जा रहे हैं। Good evening, sir, ma'am. My question is that if a patient is diagnosed with acute hematoma in left basal ganglia and diffuse cerebral atrophy, then how serious it is, and after cure, what preventive measures can be taken at home? When was the hematoma? It had happened 10 years before, and Okay. for a middle-aged man, like Okay. 60 years old. Thank you. Okay, we don't discuss individual patient, but we will make a general question and conclude. गुड इवनिंग डॉक्टर सर एंड डॉक्टर मैडम। मुझे ये पूछना है, जब हम इलेक्ट्रोग्राफ लेते हैं तो जब इलेक्ट्रोग्राम की जो 3 लीड्स होती है, इलेक्ट्रिकल लीड्स, तो हम दोनों रिस्ट पे और लेफ्ट एंकल पे क्यों लगाते हैं? अच्छा, ECG के समय। अच्छा, ये स्ट्रोक से रिलेटेड नहीं है, बट ठीक है। गुड इवनिंग सर। मैम सर, मैं डॉक्टर पीयूष हूँ, मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आया हूँ। सर, हम लोग वहाँ पे स्ट्रोक अवेयरनेस के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वी आर डूइंग कॉन्स्टेंटली इसी तरह की। सर, एक चीज़ आपसे हेल्प लेना चाहूँगा कि क्या हम स्ट्रोक प्रिवेंशन के बारे में जानते हैं, रिहेबिलिटेशन के बारे में जानते हैं? इज देयर एनी स्क्रीनिंग प्रोग्राम, कोई ऐसे टेस्ट है जो हम किसी पॉपुलेशन में उसको इम्प्लीमेंट करके स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी का पता लगा सकते हैं, जो हम अपने पेशेंट में इम्प्लीमेंट कर सकें? अच्छा, ओके। जैसे कैंसर के लिए आपकी है कोई गाइडलाइन? एक्सीडेंट में सिर फट गया और ब्लीडिंग हुआ, उसके बाद आँख की रोशनी चली जाए, उसके बाद आँख की रोशनी चली जाए तो फिर वापस हो सकता है या नहीं? एक्सीडेंट में सिर फट जाए, ब्लीडिंग हो, उसके बाद आँख की रोशनी चली जाए तो फिर आँख की रोशनी सही हो सकती है कि नहीं? ब्लीडिंग जो हुई है, क्या चोट लगने से हुई है? हाँ, एक्सीडेंट में हुई है। ठीक, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने आप को सही बताऊं, बहुत लकी मान रहा हूँ कि आज मैं डॉक्टर पद्मा के सामने खड़ा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड। क्योंकि जब मैंने देखा था कि अखबार न्यूज़पेपर पढ़ा था कि 26 जनवरी को मैंने देखा था कि मैम ने सेरेब्रल पाल्सी का ट्रीटमेंट स्टीम सेल से निकाला था और पद्मा विभूषण मिला था। मैं बहुत और मेरे क्वेश्चन ये है कि
अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम्स हो और उसका सीटी स्कैन नॉर्मल हो, तो वो इस कंडीशन को हम कहाँ कैटेगराइज करेंगे? से ही अगेन, अगर किसी कोई पेशेंट है, उसके स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसके और उसका एमआरआई पेन नॉर्मल है, तो हम किस कंडीशन में डालेंगे उसको? ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे, इसलिए देखने के लिए आया हूँ कि आप तारीफ के काबिल हैं। आपने हमारे जनरल सेक्रेटरी नॉमिनी साहब का इलाज किया, 30% 40% वो ठीक हो गए। मैं इस्लामिक कल्चर सेंटर का लाइव मेंबर हूँ और वो हमारे सेक्रेटरी हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मुझे भी स्ट्रोक 2014 में आया, मेरा एक लेफ्ट हैंड थोड़ा सा दर्द करता है, क्या मैं वापस चेकअप करूँ? मैं पेंशनर हूँ, मैं लाइफ मेंबर हूँ, मुझे आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि मेरे पास डीजीएस का भी कार्ड है, क्यों मैं आपके डिपार्टमेंट में आता हूँ तो धक्के बहुत खाता हूँ, तो धक्के खाना मैं मंजूर कर लूँगा, तो मेरे पास कैशलेस कार्ड है, कोई मुझे अच्छा हॉस्पिटल बता दीजिए कि मैं जाके चेकअप करूँ। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। आजकल कंडीशन ऐसी है, सम पेशेंट्स रात को 2:30 बजे उठते हैं, ढूंढते क्या हो गया कुछ नहीं, देन एट 3:30 मास्क लगा के ऑक्सीजन लगा के उसको डिक्लेयर किया जाता है अपर पंपिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट गोज डाउन। सरप्राइजिंगली आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। Pumping system of the heart goes weak, and then simultaneously the patient develops water in lungs. Patient then remains in the hospital for months together. इस वक्त रिकवरी होती नहीं है, बट पेशेंट कंटिन्यू टू बी एज इट इज। पेसमेकर भी लगाया जाता है उसको, क्या किया जाए? थैंक यू। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है कि क्या सर्दी गर्मी या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है स्ट्रोक के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, जैसा हम जानते हैं, आपने बताया कि नमक कम खाइए, लेकिन हम आयोडीन हमको रोज में मिलता है। आयोडाइज की कितनी पब्लिसिटी होती है, तो फिर हमारे अंदर आयोडीन की कमी से भी फिर डेफिशिएंसी आएगी, इस बारे में। अच्छा, आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गए। वो दोनों सवाल एक साथ कर सकते हैं। मन अशांत रहने से भी क्या स्ट्रोक के चांसेस हैं, और मन का ऑपरेशन कैसे करें? मन को ठीक करने का कुछ हो तो मैं भी चाहता हूँ उसको। पहला क्वेश्चन है सॉल्ट से रिलेटेड है। आपने कहा सॉल्ट कम लेना चाहिए। हाँ। तो जो ये सेंधा नमक है और रॉक सॉल्ट है, तो नॉर्मल सॉल्ट की जगह क्या कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद दीस सॉल्ट? सेकेंडली, देन माइल्ड स्ट्रोक के पेशेंट का कंसिस्टेंटली जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक रीडिंग है काफ़ी हाई होती है, जनरली 80, 145, 150 इस रेंज में रहता है। तो इज इट कॉज ऑफ वरी? Is diastolic BP remaining high? Remaining high, 140, 150 range में। Is it cause of worry? ठीक है, ठीक है। बस और दो और लेंगे, जो लोग खड़े हैं बस उनका सुन लेंगे, उसके बाद फिर। डॉक्टर साहब, जनरली लकवा लगने के बाद डॉक्टर लोग 15, 20, 25 गोलियां लिख देते हैं और वो सारी उम्र खानी पड़ती है। क्या इन दवाइयों को ना खाकर कोई और इस तरह का या इलाज हो सकता है? सारी उम्र के लिए 20, 30, 40 दवाई डेली खानी पड़ती हैं, उससे शरीर और भी खराब हो जाता है। मैं भी बीपी की दवा 25 साल से खा रहा हूँ, किन्हीं के पास वो उपाय जो बंद हो सकता है बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ टैबलेट कम हो जाए, है ना? ठीक। हाँ, my simple question. एक सेकंड सुनने दीजिए। हाँ बताइए। Talked about so many modifiable and unmodifiable factors. Yes. And how to control this. But pollution has to do with this. Pollution, very good question. ये क्या पार्किंसन जो डिजीज है, ये भी स्ट्रोक का एक टाइप है क्या? पार्किंसन
इसका तो अभी बता दूं मैं, पार्किंसंस डिजीज जिसको बोलते हैं वो अलग बीमारी है, लेकिन पार्किंसोनिज्म मतलब पार्किंसन जैसे लक्षण कभी कभी स्ट्रोक के बाद भी आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर पार्किंसोनिज्म। तो उसका फिर हम लोग देख करके पता कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। उसका अलग ट्रीटमेंट, उसका अलग ट्रीटमेंट। एक सदर ने पूछा कि एक दो सिगरेट पी सकते हैं दिन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले क्वेश्चन का थोड़ा एक्सटेंशन है, क्या पार्किंसंस के पेशेंट को स्ट्रोक की संभावना अधिक रहती है? जस्ट रिवर्स, फिर से थोड़ा सा बोलिए। क्या पार्किंसंस एस्टैब्लिश पार्किंसंस के पेशेंट को स्ट्रोक की संभावना अधिक रहती है? या ठीक, समझ नोट कर लिया। बस लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आपका लास्ट में हम बोल लेंगे। पूछना था सर कि जैसे हम हार्ट के फील्ड में अपना प्रिवेंशन के लिए इको टेस्ट या ट्रेडमिल या ये सब कराते हैं, इज देयर एनी टेस्ट वी कैन अंडरगो फॉर द finding out the health of our brain? This is one question. Second is, what is coma? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। 1999 में मुझे स्ट्रोक हुआ था। दवा तो ले रहा, मगर दोबारा ना हो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? और कुछ एक बस लास्ट में। हाँ, समझ गया, आपको नोट कर लिया। और बताइए सर, बीपी का कम होना घातक है क्या? अच्छा, कम ना हो इसके लिए क्या भोजन लिया जाए? सर, मुझे 2013 में स्ट्रोक हुआ था। हेलो सर, मेरा 2013 में स्ट्रोक हुआ था। इसके बावजूद भी कंटिन्यूस आधे घंटे का अंदर मैं ट्रीटमेंट लिया था। मैं बस 2 महीना एडमिट रहा, एक 10 प्रोटीन में। उसके बावजूद मैं अभी इतना देर लाइट हो पाएगा अपना काम खुद से कर पाऊंगा। ठीक है। ओके, बहुत क्वेश्चंस हो गए। एक राउंड और हम चलते हैं। डॉक्टर रोहित भाटिया, आप एट्रियल फिब्रिलर एएफ और स्ट्रोक इसको बताएंगे। अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, because one of the important risk factors for stroke in elderly population, generally above 60 or 70 years of age, is an undiagnosed atrial fibrillation. जैसे आपकी एज एडवांस होती है, every 10 years, your risk of atrial fibrillation keeps on increasing and doubles. So, atrial fibrillation का मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मल रिदम है हार्ट का, वो डिस्टर्ब है। आपका जो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से आपकी ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल से आपके ब्रेन को जाता है और बाकी स्ट्रक्चर्स को जाता है। जब आपका एट्रियम रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करता है, मल्टीपल टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड टेंड्स टू पूल इन द हार्ट चैम्बर। वो पूरा ब्लड वहां से एम्प्टी नहीं होता, वहां पर क्लॉट बनता है और उस क्लॉट से वेंट्रिकल में जाता है, वहां से आपकी ब्लड वेसल में जाके उसको ब्लॉक कर देता है। हमारे कंट्री में एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रेवलेंस रिलेटिवली वेस्ट से कम माना जाता है, बट हमारा सोचना ये है स्ट्रोक वालों का कि एट्रियल फिब्रिलेशन डायग्नोज कम हो पाता है, लोग उसको ओवरलुक कर देते हैं एज ए रिस्क फैक्टर। हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि जो भी पेशेंट आता है यहाँ पर एडमिट होता है, हम एक 24 आवर्स का होल्टर स्टडी कराते हैं जरूर जानने के लिए कि अगर और कोई रीजन नहीं मिला, आपकी ब्लड वेसल्स हेल्दी हैं, आपका हार्ट अदरवाइज हेल्दी है, फिर भी आपको स्ट्रोक हुआ, तो एट्रियल फिब्रिलेशन को पता लगाना बहुत जरूरी है। वी मे बी एबल टू पिक अप, वी मे नॉट बी एबल टू पिक अप, दैट इज नंबर 1। अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है तो यू हैव टू बी ट्रीटेड विद स्पेसिफिक मेडिकेशंस कॉल्ड एंटीकोएगुलेंट्स, मतलब जो आपकी ब्लड की क्लॉटिंग को रिड्यूस करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इट, एक जो पुराने टाइप के हैं जिसको हम वार्फरिन बोलते हैं, एसिट्रॉम बोलते हैं, उसके साथ आपको एक ब्लड टेस्ट कराना होता है रेगुलरली जिसको INR मॉनिटरिंग बोलते हैं। आप में से कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो वार्फरिन पे या एसिट्रॉम पे हैं या जिन्होंने INR मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने स्ट्रोक के बाद? कोई है यहाँ पे पेशेंट्स?
अच्छा, एनीवे अगर आप ओरल एंटीकोएगुलेंट्स पे हैं, ओल्ड टाइप ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, तो आपको अपना आईएनआर मॉनिटरिंग रेगुलर कराना होता है क्योंकि उसकी एक रेंज होती है। अगर आप उस रेंज में है बिटवीन 2 and 3 means that your clotting of the blood has been reduced to a level that the chances of formation of clot are reduced remarkably. अगर आप मॉनिटर नहीं करते हैं और आपका 2 से नीचे रहता है तो इसका मतलब वो ड्रग इफेक्टिव नहीं है, आपको स्ट्रोक होने का रिस्क उतना ही है। और अगर वो हायर साइड पे चला जाता है, मोर देन 3, 3.5, 4, that means you are at a risk of now a hemorrhagic complication, क्योंकि ब्लड बहुत थिन हो जाएगा तो आपको ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है, मुंह से भी हो सकती है, यूरिन ट्रैक्ट से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। अब पिछले 3 या 4 साल से कुछ नए एंटीकोएगुलेंट्स अवेलेबल हैं जिनको हम न्यूअर एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं, जिसमें ये आईएनआर मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती है। उसकी एक फिक्स डोज होती है, वो आपको मॉर्निंग, इवनिंग या सिंगल डे डोज पे लेना है। बट ये आपका जो ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके, एज, किडनी फंक्शन, कॉस्ट, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं नहीं, उस पर डिपेंडेंट होता है। सो एट्रियल फिब्रिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। उसके लिए स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए हम लोग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं, और आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो आपके रेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ ड्रग्स देगा जिससे आपका हार्ट बीट रिलेटिवली उस रेंज में रहे जो आपके लिए हानिकारक नहीं है। बिकॉज बहुत बार एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स हमारे पास एडमिट होते हैं, हार्ट रेट 140, 150, 160 तक पहुंचा होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जो आपके रिदम को कंट्रोल करती हैं। सो बोथ रिदम, rate and prevention of stroke has to be done in patients of atrial fibrillation, and it's a very important risk factor in relatively elderly population. हमारे कंट्री में एक और डिजीज होती है हार्ट की, उसको रोमैटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की वॉल्स खराब हो जाती हैं यंग एज में। उन पेशेंट्स को भी एट्रियल फिब्रिलेशन होने का बहुत चांस होता है, उनको भी यही ड्रग दिया जाता है, बट एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ड्रग दिया जाता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई एम थैंकफुल दैट यू आस्क्ड, एंड पीपल शुड बी नॉलेजेबल अबाउट एट्रियल फिब्रिलेशन एंड स्ट्रोक। In other words, atrial fibrillation भी एक स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है। हम लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वैसे atrial fibrillation is a risk factor. Very important. अच्छा, then Dr. Deepti, one of the question was whether I advise them to reduce salt, whether reducing salt and sodium going to 125 will lead to stroke, and reducing salt may not lead to iodine deficiency. There were actually 3 questions related to salt. One was that if the salt becomes lower than the normal level, अगर हम salt इतना कम कर दें कि हमारा शरीर में सोडियम ही कम हो जाए तो उससे भी स्ट्रोक हो सकता है कि नहीं। दूसरा ये था कि अगर हम सॉल्ट बहुत कम कर देंगे तो इस चीज़ का तो खतरा नहीं कि हमें हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। और तीसरा सवाल शायद ये था कि सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट ये जो खाते हैं ये हम सॉल्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। मैसेज ये है कि सॉल्ट इंटेक अगर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है और ब्लड प्रेशर होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सब्जी खाएं उसमें नमक ना डालें, या जो हमारे प्राकृतिक वो होते हैं उनमें भी नमक होता है, उसमें इनफ नमक होता है जो हमारे बॉडी के सोडियम होमोस्टैसिस या नियंत्रण को, संतुलन को बना के रखता है। अगर हमारी किडनी ठीक है, हम नॉर्मल सॉल्ट लेवल ले रहे हैं तो हमारा सोडियम लेवल अपने आप 126 या 136 से नीचे नहीं होगा। अगर हम कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो सोडियम को किडनी से पुश कर रही है, जैसे हम डायूरेटिक्स ले रहे हैं, तो उससे सोडियम कम हो सकता है। ऐसे केस में कई बार हमें डॉक्टर खुद एडवाइस करता है कि हमें सॉल्ट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है। तो अगर सॉल्ट आपको कम करने के लिए कहा गया है तो उसका ये है कि जो ऊपर से टेबल सॉल्ट डाला जाता है सलाद में वो नहीं डालना है। दूसरा कि जिन लोगों को नमक कम करने के लिए उनकी सब्जी में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, सब्जी में तो नमक कम कर लेते हैं, फिर साथ में अचार ले लेते हैं, पापड़ ले लेते हैं, तो हाई सॉल्ट कंटेंट वाले होते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि उस नमक की कमी, नमक कम ले रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे प्रकार से सॉल्ट ले रहे हैं। तो सॉल्ट restriction or low salt intake means a honest low salt intake. It does not mean reducing the salt to nil and making the food tasteless. That is one message. The second is about iodine deficiency, because if you are taking less salt, that's not the right thing. One is iodine deficiency is especially prone in belts
the foothills where the natural resource of iodine is poor, and therefore iodine supplementation came in the salt form. Even if you're taking low salt intake, that is enough from your other dietary natural resources or dietary sources to give you enough iodine. As far as the Rona salt or the rock salt or this salt, other forms of salt are concerned, it's basically the content of sodium. तो अगर आप उसको ज़्यादा मात्रा में खाएंगे ये सोच के कि उससे हम कितना भी नमक खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये गलत चीज़ है, ये गलत कॉन्सेप्ट। Yes. ओके, नाउ एक सज्जन पूछ रहे थे कि पॉपुलेशन लेवल पे कोई ऐसा तरीका है कि उससे हम प्रिडिक्ट कर सकें इनको स्ट्रोक हो सकता है कि नहीं, और उसका प्रिकॉशन ले सकें एंड प्रिवेंट कर सकें। और उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये इस इशू पे बातचीत शुरू हुई थी यूएसए में, और दुर्भाग्य ये था कि उनके प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे उनका हाई ब्लड प्रेशर लोग बोल देते थे कि नॉर्मल है, आप बुढ़े हो गए हैं इसलिए ब्लड प्रेशर हाई है आपका, और उसको ट्रीट नहीं किया उन्होंने। रूजवेल्ट साहब ब्रेन हेमरेज से मर गए। लेकिन उन्होंने एक स्टडी शुरू करा दी जो अब पूरे वर्ल्ड का गोल्ड स्टैंडर्ड है प्रिडिक्शन करने के लिए। तो यहाँ वसंत कुंज से कुछ लोग आए हैं, हाथ उठाइएगा वसंत कुंज से। हाँ, तो इसलिए मैं बताना चाहता था कि उन्होंने प्रिडिक्शन इस तरह से शुरू किया कि लोग जब हेल्दी थे उस समय उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब मेजर करके सब रिकॉर्ड रखा। उसके बाद फिर जब उनको स्ट्रोक हुआ तो रिलेशनशिप देखा, कोरिलेट किया, जिसको स्ट्रोक नहीं हुआ उसको हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है, उससे एक प्रिडिक्शन का तरीका मिल गया। तो अब उन लोगों के यहाँ एक कार्ड मिलता है कि अच्छा आपका शुगर या डायबिटीज है, कितना है, कितने ऐसे देख करके कार्ड से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इतना परसेंट रिस्क है हमको स्ट्रोक का, इतना परसेंट रिस्क है हार्ट अटैक का। एक कार्ड बन गया है उनके यहाँ। हमारे यहाँ उस तरह की कोई स्टडी इंडिया में अभी तक हुई ही नहीं थी और हुई नहीं है, लेकिन हमने जो वसंत कुंज में है वो जानते होंगे, हमने शुरू किया इस तरह की स्टडी जिसमें 50 साल से ऊपर के लोगों का नॉर्मल है, हेल्दी है, अदरवाइज डायबिटीज हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, लेकिन स्ट्रोक नहीं हुआ है, हार्ट अटैक नहीं हुआ है, या हार्ट अटैक को हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रोक नहीं हुआ है, डिमेंशिया नहीं हुआ है, उनको लेकर के मेजर कर रहे हैं। उनको हम देखते जाएंगे, हर एक 6-6 महीना पे फोन करते रहेंगे और 3-3 साल में देखेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्रिडिक्शन का कोई तरीका या मॉडल है कि नहीं, वो इसी से डेवलप होगा। ये कम से कम इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टडी है जो हम कर रहे हैं, और एक रूरल एरिया में भी उसका है करना और एक अर्बन एरिया में करना है। लेकिन नॉर्मल तौर पे मैं ये बताऊंगा कि आप जो है रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान रखिए, वही अपना बीपी मेजरमेंट कराते रहिए, शुगर का चेक कराते रहिए, साल में एक बार जिनको नहीं है डायबिटीज कराना ही चाहिए चेक, कोलेस्ट्रॉल का चेक कराते रहिए, हार्ट का चेक कराते रहिए, हार्ट का जिन्होंने कहा चेक कराते हैं उस तरह से कराते रहिए। और लाइफ स्टाइल में जैसा हमने कहा कि स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल लिमिटेड या नो के बराबर, ये रेगुलर वॉकिंग करनी है, खाने पीने पे जो बात हुई वो सब पे ध्यान देना है, और वेट ठीक रखना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ये सब करेंगे तो प्रिवेंशन का आप बहुत हद तक सारा कुछ जो कर सकते हैं कर रहे हैं। वो मॉडल कब बनेगा वो तो टाइम लगेगा, लेकिन अभी उसके लिए वेट नहीं करना है। जो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो चेक करा सकते हैं, अपना कैरोटिड का अल्ट्रासाउंड होता है, वो अगर बहुत चिंतित हैं वो चेक करा लें, उसको फॉलो करें टाइम टू टाइम। हार्ट का तो टेस्ट कराते ही हैं लोग रेगुलरली। और आप कहेंगे कि कोई हर एक आदमी सारे ब्लड वेसल्स को चेक कराते रहे, वो चीज़ ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं है। वो तो हार्ट का भी कोई हर एक आदमी एंजियोग्राम थोड़ी कराता रहता है, जब कुछ सिम्टम होता है तो एंजियोग्राम कराते हैं। इसलिए प्रिडिक्शन से ज़्यादा हम सोचेंगे कि प्रिडिक्शन मॉडल बनेगा हम लोगों के स्टडी के बाद,
ये एम है कि बनेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि रिस्क फैक्टर कंट्रोल में रखिए, लाइफस्टाइल ठीक रखिए। जब कुछ लोग अब जा रहे हैं, इसलिए मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने ये स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम पहले भी किया, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते थे कि पहले लेक्चर देते थे, अलग अलग सब लेक्चर दिए, 3 लेक्चर या 2 लेक्चर 4 लेक्चर, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करते थे। क्वेश्चन आंसर का टाइम बहुत कम मिलता था, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर में हमारे लेक्चर के टॉपिक सारे कवर हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हुए हैं। ये जानना चाहता हूँ कि लेक्चर बेस्ड वाला ज्यादा अच्छा लगा आपको कि क्वेश्चन आंसर बेस्ड ज्यादा अच्छा लगा? अभी मैं पूछूंगा, 1 मिनट। लेक्चर बेस्ड कितने लोग लाइक करते हैं? अच्छा, तो लेक्चर से शुरू होना। कितने लोग क्वेश्चन आंसर बेस्ड लाइक करते हैं? ये देखिए, अगर प्रजातंत्र है तो ये क्वेश्चन आंसर वाला जीत गया, ठीक है। नहीं, अच्छा है, हम फिर इसी तरह का करेंगे, क्योंकि सारा टॉपिक तो कवर हो ही जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अखरोट के बारे में था, डॉक्टर पद्मा, अखरोट के बारे में। अखरोट दिखता भी ब्रेन जैसे ही है ना, that's one thing nut which looks like a brain. So therefore yes, अखरोट is very good, you can have it. Remember one thing, diet or physical exercise, whatever it is, everything in moderation. There is nothing sacrosanct कि ये completely no, that completely no is probably smoking. उसमें कोई moderation नहीं है, तो 1-2 cigarettes पी सकते हैं, is no. However, whereas diet is concerned, अखरोट अच्छा है, but ये नहीं कि आप 1 किलो अखरोट रोज खाते हैं, isn't it? So everything in moderation. Salt is important. बिना salt, अगर डॉक्टर दीप्ति ने कहा salt कम हुआ तो बहुत नुकसान होगा. So you need sugar, you need salt, you need oil, you need cholesterol, you need अखरोट, whatever. So, but everything in moderation. दूसरा, डॉक्टर पीयूष ने पूछा था about the stroke. There are stroke riskometers now which is developed in the world. India specific नहीं है. फिर भी there are some regions जो stroke apps बना रहे हैं, wherein there are certain parameters अगर आप feed in करें, then you have some kind of a risk. ये कितना validated हुआ, कितना is it really commensurate with what we want? We don't know, but there is some development in that process. And there's one question somebody asked, if physical exercise is one thing, so how do you exercise the brain? I don't know if the gentleman is still here. Yes, sir. Exactly. So usme the most important adage is use it or lose it. So there are 2 important things for brain that have to be taken as a take-home message. One, time is brain. So just like time is heart. So जो अगर attack हुआ तो your timely treatment will try and save the brain as much as possible. So time is brain. The second, use it or lose it. So brain has to be used. ये कोई rest लेने की बात है नहीं. तो उसमें जो कहते हैं ना कि सुडोको पजल करो, ये करो, वो करो, गुड, अगर आपके पास टाइम है तो करिए. But most important is don't become couch potatoes. Don't keep seeing this television serials of Saas Bahu and etc. and just vegetate. The basic thing is use the brain. उसमें आप puzzles करिएगा. Be actively involved in the societal thing, in news, in day-to-day things. Being active brain-wise. Don't degenerate, don't vegetate. The moment आपकी interest हट जाती, आपकी activities में, आपकी society में, आपकी interaction में, आपकी interaction with friends, with societal, with relatives, whatever it may be, taking interest in that, और वो जो responsibility is not just the patient, it has to be family as a whole. जैसे जैसे लोग उम्र बढ़ती है, they tend to get isolated from decision making process in a family, which should not be there. So this is a message to all young people कि हमारे बुजुर्ग, हमारे parents, हमारे grandparents, we have to involve them, be inclusive. So वो continue to be our support and we support them. So I think this calls for some soul searching, and as a society we have to be improved. तो उसमें अगर आप active रहे, that itself is enough for your brain to remain all right. I think the moment इसीलिए जैसे कोई retire हो जाता है, he just degenerates because your interest, your involvement,
एंड यू फील देयर इज अ सेंस इंपॉर्टेंस, लगता है कि वो कम हो गया है। सो ये ना हो और आपकी इंटरेस्ट बढ़ती रहे, आपकी हॉबीज यू ऑलवेज हैव टू, आई थिंक वी ऑल शुड डेवलप हॉबीज। कभी ना कभी व्हेन वी हैव द टाइम, अब तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम है तो क्या करें वो वक्त से, तो उसमें अगर हम करें, अभी से शुरुआत करें, it will largely help us to preserve the brain. So use it or lose it. We have to avoid the loneliness. Yes, you should not do it. Dr. Rohit, can you talk about number of medicines to be reduced? How to reduce number of medicines? There was a question about number of medicines. Actually, हाँ हाँ वो आ रहे हैं वो सभी पे आ रहे हैं। अब लोग जो है शायद उनका एक्चुअली जो मेडिसिन आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे विल डिपेंड ऑन व्हाट थिंग्स नीड टू बी मॉडिफाइड इन योर रिस्क फैक्टर्स। अगर तो आपको सिर्फ हाइपरटेंशन है और आप एक ब्लड प्रेशर से कंट्रोल हो रहे हैं, एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से, तो उसकी दूसरी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले एक ही को ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा तो ही विल हैव टू ऐड अनदर मेडिकेशन। ये तो ब्लड प्रेशर है। अगर आप डायबिटिक भी हैं तो नेचुरली आपको डायबिटीज़ कंट्रोल की मेडिसिन तो खानी पड़ेंगी, चाहे वो मेडिसिन हैं या वो इंसुलिन हैं या दोनों चीज़ें हैं। दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मेडिसिन। एज फार एज स्ट्रोक इज कंसर्न, अगर आपको ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक हुआ, इस्केमिक स्ट्रोक हुआ, तो उसके लिए आपको एस्पिरिन तो लाइफ लॉन्ग खाना ही है। और साथ में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और मॉडरेटली ज़्यादा भी है तो उसको लोअर करना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको एक फैट कम करने वाली मेडिसिन जिसको हम स्टैटिन्स बोलते हैं वो आपको लेनी है। उसके अलावा मल्टीविटामिन्स आपको खाना है या आपको नहीं खाना है, उसका कोई बहुत डिफाइंड रोल नहीं है, बट जनरली पीपल लाइक टू और पीपल प्रेफर टू टेक अ मल्टीविटामिन अ डे, दैट कैन बी टेकन। सो स्ट्रोक के पर्सपेक्टिव से अगर आपका एक रिस्क फैक्टर है तो एस्पिरिन और स्टैटिन के अलावा आपको सिर्फ वो दवाई एक्स्ट्रा दी जाएगी। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसकी दवाई दी जाएगी। जनरली यही मेडिसिन होती हैं, ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिसिन, फैट लोअरिंग मेडिसिन, एस्पिरिन एंड डायबिटिक मेडिकेशन। स्मोकिंग की तो कोई दवा है नहीं। हाँ, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं कि मेरी स्मोकिंग तो नहीं छूट रही है और वो आपको निकोटिन पैच देना चाहते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे डालते हैं तो अलग बात है। आप अल्कोहलिक हैं, आपसे नहीं छूटा जा रहा, आप एडमिट होते हैं, उसके लिए कुछ समय दवाई चलती है, वो टेम्परेरी थिंग्स हैं। बट लॉन्ग टर्म मेडिसिन में से नॉर्मली 4 to 5 मेडिसिन आर ऑन द एवरेज जो प्रिस्क्राइब होती हैं। अब कोई आप अननेसेसरली आपकी लॉन्ग लिस्ट है तो वो तो आपका डॉक्टर ही बता सकते हैं कि व्हाई सम मेडिसिन आर बीइंग यूज्ड। कुछ दवाई आपने देखी हैं कि स्ट्रोक होता है तो कुछ वो बोलते हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं दवाइयाँ, वो दे देते हैं लोग बहुत सारा खाने के लिए। हम उस कॉन्सेप्ट में अभी बिलीव नहीं करते बिकॉज उसका कोई अभी एविडेंस नहीं है कि कोई भी ऐसा प्रोटेक्टेंट है जो स्ट्रोक के डैमेज को कम कर सकता है। हमने देखा है उसमें 10, 12, 15 लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती हैं। सो आई थिंक एज फार एज stroke management is concerned, apart from aspirin and fat lowering medicine, other medicines are depending on what risk factors you have, especially diabetes and hypertension. So the average medicines would be anything from 4 to 6 only on the average. ऐसे जो पूछ रहे थे उनका कंसर्न सही है। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर से मरीज आते हैं, 10, 12, 15 मेडिसिन चल रहे हैं और हम लोग का मेन काम होता है कि काटो मेडिसिन कम करो, और जैसे जैसे कम करते हैं वो मरीज अच्छा होता रहता है। और एक पेशेंट की बात नहीं है, हमारे ब्रदर को है, नहीं कम से कम मैं स्पेसिफिक 25 गोलियां डेली, मैं स्पेसिफिक बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बराबर कहता हूँ इस चीज़ को कि एक पेशेंट जो हमारा मोस्ट ग्रेटफुल पेशेंट था, वो आया कि साहब ठीक नहीं हो रहा है, स्ट्रोक ठीक नहीं हो रहा है, उसको लेकर के आया, भर्ती कराया। उसको बाई चांस ना तो डायबिटीज था, ना ब्लड प्रेशर था, ना कुछ था, हमने सारी दवाइयाँ बंद कर दी, पेशेंट ठीक हो गया। और वो जो है वो सारा ग्रेटफुल पेशेंट है। बताइए, इस तरह का जो है अननेसेसरी मेडिसिन बहुत लोग देते हैं। और हमने एक फोटो बना रखी है, एक मरीज था जिसको 35 मेडिसिन चल रहा था, उसका स्लाइड बना के रखा है, ठीक है। वो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। उस ख्याल से एम्स के डॉक्टरों का वन ऑफ द मेन जॉब इज टू कट डाउन मेडिसिन।
बाहर से जो लिख करके आते हैं, एंड कट डाउन टेस्ट ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है उसको मत करो, ये जरूरी नहीं है उसको मत करो। सो क्वेश्चन वाज राइट, बट डॉक्टर भाटिया आई थिंक हैज एड्रेस्ड वेरी वेल। सर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि बहुत बार पेशेंट्स को ये साइकोलॉजी होती है कि डॉक्टर ने सिर्फ 3 दवाइयां लिखी हैं, ये ठीक तो होगा नहीं। सो आई थिंक नो, वी हैव ऑब्जर्व दिस साइकोलॉजी। पेशेंट आएगा हेडेक के साथ, हम एक टैबलेट लिखेंगे, डॉक्टर एक ही गोली। सो ये आपको भी एज अ पेशेंट इंटेलिजेंट होना जरूरी है, नॉलेजेबल होना जरूरी है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक डिजीज के लिए 25 दवाइयां खानी हो। बेसिक दवाई वही रहती है, बाकी तो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन है। इसलिए यू हैव टू बी आल्सो इंटेलिजेंट एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर कि इसमें से एक्चुअली कौन सी जेन्युइनली रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि आपको 10 से कम आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे इसलिए वो 12वीं लिख रहा है। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता है ये तो आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी। नहीं वो ठीक है, हम भी बोलते हैं, बट जो रिक्वायर्ड है उन्हीं के बारे में ना। जो रिक्वायरमेंट है, एस्पिरिन नहीं बंद कर सकते आप लाइफ लॉन्ग, कुछ चीजें हैं जो नहीं बंद करनी। बट तो लेमैन आदमी हमें क्या पता। बहुत माइल्ड स्ट्रोक केसेस जो आते हैं, बहुत माइल्ड स्ट्रोक और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, एक ही दवा चलती है एस्पिरिन, ठीक है। अब वो मरीज और मरीज का अटेंडेंट आगे करना, डॉक्टर साहब दवाई नहीं चल रही है, ये दवाई चल तो रही है, अरे एक ही दवाई चल रही है डॉक्टर साहब और कुछ नहीं दोगे, जरूरत नहीं है तो फिर क्यों दें। इसलिए जो है जहाँ जरूरत होती है वही देते हैं और मरीज ठीक हो जाते हैं। जो डॉक्टर दीप्ति बताएंगे इसका जवाब, दोबारा ना हो उसके लिए क्या करें, ऐसे तो हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं, ये शॉर्ट में रिपीट कर दो एक बार आप प्लीज। जो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए जो हम अभी तक इतनी देर से बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब रिस्क फैक्टर्स पहले स्ट्रोक के लिए भी हैं और दूसरे स्ट्रोक के लिए भी हैं। तो रिस्क फैक्टर्स वही है, खतरे वही हैं, हमारे दुश्मन वही है, बचना हमें उन्हीं से। प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को पहला लकवा हुआ है उसमें जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया कि एट्रियल फिब्रिलेशन अगर पिकअप नहीं हो पाया तो बाकी चीजें तो कंट्रोल कर लिए, लेकिन उसके बावजूद हमें दोबारा लकवा हो गया तो हो सकता है कि कोई ऐसा रिस्क हो जो हमने आइडेंटिफाई ना किया हो जिसकी वजह से लकवा हुआ हो। एक तो वो दूसरे लकवे का कारण होता है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। इसीलिए अगर पहला लकवा छोटा भी हुआ है, हो सकता है आपको एक अदरक हुआ और 2 दिन में ठीक हो गया, आपने सोचा अपने आप ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ होगा, आप डॉक्टर के पास गए नहीं, आपने इग्नोर कर दिया। तो अगर आपको पहला लकवा हुआ है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो एक वार्निंग मैसेज जो 5 मिनट के लिए कोई लकवे जैसा हुआ और उसके बाद आप ठीक हो गए हो, आपको डॉक्टर के पास जाके अपना थर्ड चेकअप कराना है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके दूसरे लकवे होने के चांस कम से कम हो जाए। तो दोबारा लकवा होने से बचना के लिए जो हमें एक्शन लेना है वो सेम है पहले लकवे के लिए। हाँ, खतरा दोबारा लकवा होने का जिसको ऑलरेडी लकवा हो चुका होता है उसको ज्यादा होता है। और जिसको कैरोटिड में, इस आर्टरी में नर्विंग है उसको बैलूनिंग करा लेना चाहिए, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन है उसके लिए जो दवा डॉक्टर भाटिया ने बताया वैसे लेना चाहिए। ये सब चीजें करनी होती है दोबारा ना हो। एक इस्लामिक सेंटर से जो सज्जन आए हुए हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है यहाँ। हमें तो मैं बराबर से ये सोचता रहा हूँ कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सबसे आसान है दिखाना। क्यों मैं ऐसे बोलता हूँ कि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं कि ऐसा है कि आप इस डिपार्टमेंट में थोड़ा दिखा लो जाकर। जैसे बोल दिया उसको कि ठीक है, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसको कंसल्टेशन की जरूरत है, जाओ जी वहाँ दिखा लेना और मेरे पास फिर तुम 3 महीने बाद आना। 3 महीने बाद वो आता है पूछने कि हाँ अच्छा उस डिपार्टमेंट वालों ने क्या बताया, अरे साहब उसका तो टाइम ही हमें 4 महीने बाद का मिला है, तो अभी तो मैं दिखाया नहीं हूँ। अच्छा न्यूरोलॉजी में ही आसान होता है, बार बार आप दिखा लेते हो। और बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको दूसरे कई डिपार्टमेंट का बोलते हैं वो प्राइवेट में दिखा लेंगे। हमने कहा नहीं, हमने तो कहा था एम्स में दिखा, नहीं साहब नहीं, नंबर नहीं मिल रहा था, बहुत वेटिंग टाइम है। ये न्यूरोलॉजी में सबसे आसान है क्या? तो कई मरीजों ने कहा कि न्यूरोलॉजी में सबसे आसान है। उसमें आसान बनाने के लिए हमने एक तत्काल सेवा शुरू की। ये सिर्फ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में है हमारे मरीज। तो तत्काल सेवा ये है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, अगर लाइन में खड़े हैं तो उस दिन आपको देख ही लिया जाएगा। ये चीज जो है सिर्फ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट करेगा। मैं सोचता हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे आसान है। 1 मिनट बैठिए आप, लेकिन फिर भी दिक्कत तो होती है क्योंकि एक ओपीडी में 200, 250, 300 मरीज आते हैं। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे और एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं इस चीज को एश्योर करता हूँ कि
पेशेंस तो रखना होगा, लेकिन धक्के मुक्के नहीं लगेंगे। आपने धक्के मुक्के की बात की, वो नहीं होगा। आप मेरे पास आएंगे, मैं रूम नंबर 1 में ट्यूसडे और फ्राइडे को बैठता हूँ, तो आप सीधे मेरे रूम में आए, कहाँ क्या दिक्कत हुई है हमसे आकर के मिले, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये हमें अच्छा नहीं लगता सुन करके कि बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, एक जो सर्दी गर्मी की बात किसी ने कहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सर्दी शुरू हो रही है, तो सर्दी में होता क्या है कि शरीर चाहता है कि गर्मी को बचाए रखे। तो ऐसा होता है कि गर्मी को बचाने के लिए ऐसा नेचर ने बना रखा है कि सारे ये सब इधर से ब्लड जो है हाथ पैर से ब्लड को खींच लेता है, मतलब वो नलियां सिकुड़ जाती है उधर। और नेचुरली ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को, ये सबको तो ब्लड पहुंचना ही है, तो वो उसके लिए वो सब तरह से कर लेता है। ब्लड अंदर रखता है, बाहर नहीं ज्यादा हाथ पैर में डाले देता है, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को बचाना है। तो इसलिए उसमें ऐसा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि इधर की नलियां सिकुड़ जाती है। कोई भी नली है, पानी बह रहा है उसमें, उसको सिकुड़ा दीजिए तो प्रेशर तो बढ़ेगा, तो इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर आप नापेंगे तो विंटर में जनरली, जिनका समर में ठीक था, विंटर में नहीं होता। और भी कारण है, जैसे स्वेटिंग बंद हो जाता है विंटर में, तो नमक कम निकलता है, तो ब्लड प्रेशर जो है नमक से रिलेटेड है, इसलिए भी बढ़ने की टेंडेंसी होती है। एक्टिविटी कम हो जाती है, लोग बाहर जल्दी, अभी देखिएगा जनवरी में ठंडक बढ़ेगी तो लोग टहलने जाना बंद कर देंगे, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की बात हो सकती है। सभी कारण इस चीज को दिखाते हैं कि सर्दी में ब्लड प्रेशर गर्मी से थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए चेक कराना चाहिए। हो सकता है दवा, डॉक्टर बोले तो दवा को एडजस्ट भी करना पड़े, लेकिन यही कारण है कि हम लोग सब जानते हैं, अभी से सर्दी शुरू हो रही है, सब हमारे डॉक्टर्स बोलना शुरू कर दिए, अरे साहब अब ब्रेन हेमरेज का सीजन आ गया, ब्रेन हेमरेज का सीजन आ गया। वो ब्लड प्रेशर से इतना स्ट्रांगली रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्रेन हेमरेज होता है। तो सर्दी में एक सावधानी रखें कि आप ब्लड प्रेशर चेक जरूर करें, और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो कोई बात नहीं। बहुत लोगों का कंट्रोल में ही रहेगा क्योंकि फिजिकली एक्टिव है, और बहुत लोगों का कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो है कंट्रोल में लाने के लिए डॉक्टर से मिले और उसका उपाय करें। तो ये सर्दी गर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, स्ट्रोक और खासकर ब्रेन हेमरेज के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हेमरेज टाइप का ही होगा, ब्लॉकेज टाइप का स्ट्रोक नहीं होगा। दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इससे, ब्लड प्रेशर से। इसलिए ब्लड प्रेशर को ठीक रखना, हम बराबर कहते हैं कि अगर 3 उपाय करने हैं आपको स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए, तो वह कंट्रोल ब्लड प्रेशर, दूसरा भी है कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और तीसरा भी है कंट्रोल ब्लड प्रेशर। इसलिए जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये हार्ट वाले इतना नहीं बोलते हैं, क्योंकि हार्ट वालों के कई चीजें हैं। ब्रेन में सबसे ज्यादा असर पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए मैं मान के चले कि कितना कंट्रोल पाए, जैसे मैं 65। हाँ, तो खैर अभी सारे क्वेश्चंस जो लिए हैं उनको खत्म कर लें, उसके बाद फिर। अच्छा, एक सज्जन थे जो पूछ रहे थे कि ये MRI नॉर्मल है और स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, उसके बारे में। तो ये जो है कि जो अगर स्ट्रोक है तो MRI में तो खासकर तो दिख ही जाएगा, ये नहीं कि MRI उसी समय हो गया, कुछ परसेंटेज 5% में पिकअप नहीं आता वेरी एक्यूट स्टेज में, वो नहीं। तो स्ट्रोक जो लकवा, पक्षाघात, ये जो है कई कारण से होता है। जो स्ट्रोक या ब्रेन अटैक जो हम कह रहे हैं, जिसके बारे में आज विस्तार से बातचीत किए हैं, ये है जो खून की सप्लाई की कमी हो गई, या खून की नली बंद हुआ, या खून की नली फट गई। उसके अलावा भी ये लकवा या पक्षाघात होती है, वो कई कारणों से है। वो धीरे धीरे बढ़ सकता है, कुछ सब एक्यूट होती है उसकी, तो वो अलग चीजें होता है ना। MRI नॉर्मल और ये लक्षण हुआ तो वो हो सकता है कुछ और कारण, जैसे किसी को ग्लूकोज कम हो गया, उसको भी ऐसे लगता है, किसी को सोडियम कम हो गया, उसी को भी हो सकता है, किसी को कुछ दौरे जैसे हो गया, दौरे के बाद एकदम से कुछ वीकनेस आ जाती है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। तो देयर आर लॉट ऑफ व्हाट आर कॉल्ड एज स्ट्रोक मिमिक्स। वो स्ट्रोक मिमिक्स में MRI नॉर्मल आती है, तो उसके कारण कुछ और होता है।
There is a question about pollution and stroke, Dr. Rohit. I think I am fully in agreement that pollution is associated with many non-communicable diseases, including stroke and also communicable diseases. Asthma, chest problems, इसके बारे में तो सब लोगों को आपको पता है, because उसका immediate effect आ जाता है. आप irritant air में breathe करते हैं तो you will get cough, cold and everything. But what pollution probably is doing is, on a slow process, it is probably disturbing your systems of the body. And one of the systems is that probably it is also associated with likelihood of developing stroke as a risk factor. अभी कोई बहुत strong proof नहीं है, but ये study किया जा रहा है worldwide कि polluted air may be associated with cardiovascular risk, including stroke and heart attack. और studies slowly publish हो रही हैं कि polluted atmosphere में रहने वालों को stroke और heart disease ज़्यादा incidence और prevalence है compared to the less polluted zones. अभी बहुत बड़ी एक study और भी publish हुई थी हमारे international journal में, हमारी नहीं मतलब बाहर से जब data collect हुआ, तो pollution was considered to be a risk factor in 23% of patients. So I think it is possibly an important risk, and we all have to help the state authorities and the country and as individuals to reduce this pollution burden. And I think हम ही लोग कर सकते हैं. Use more public transport, whatever way we can. Reduce the number of cars you want to buy. There is no need of one family to have 4 cars. I mean, बहुत सारे हम लोग जो कैंपस में रहते हैं, हम लोग अक्रॉस द कैंपस रहते हैं, तो हम लोग भी वॉक करके आते हैं. कोशिश यही होती है कि उसको मिनिमाइज कर सकें. करना तो हम लोगों को ही पड़ेगा. You can't change where India is located in the globe, but as individuals we have to work hard towards pollution. It is no solution कि आप अपने घर में air purifier लगा दें. That's not a solution. I think we all have to come together, and जब odd even हुआ तो हम लोगों ने बहुत लोगों ने object किया. But I think at some stage some hard rules have to be implemented. नहीं तो ये pollution का business ठीक होने वाला नहीं है और stroke और heart disease तो बढ़ेगा. Because I think it's an emerging major risk factor for cardiovascular diseases. We can't go away from that. इसलिए odd even पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत problematic issue है. डॉक्टर दीप्ति, बीपी का कम होना घातक है क्या? ब्लड प्रेशर का कम होना घातक है क्योंकि उससे अपने रिस्क होते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर कम होने का रीजन क्या है और वो रिकॉर्ड कितना किया गया है ये जानना इम्पोर्टेंट है. अगर कोई पोस्टमार्टम लेडी प्रसूता स्त्री बहुत ब्लड लॉस हो जाता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो डेफिनेटली वो घातक है. अगर कोई ऐसी दवा ले रहा है जिससे ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है और उसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, वो घातक है. लेकिन लो ब्लड प्रेशर, बहुत सारे लोग हमारे पास आके कहते हैं कि हमें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और उनको अपना ब्लड प्रेशर का मेजर भी कई बार नहीं पता होता है. तो अगर किसी का 110/70 है लेकिन उसका हमेशा उतना ब्लड प्रेशर रहा है तो उसके लिए नॉर्मल है. जो भी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग है अगर वो अक्रॉस द पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल रही है, इतनी ही रही है, तो उसको अपने आप को लो ब्लड प्रेशर कहने का कोई औचित्य नहीं है. लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन कुछ स्पेशल कंडीशंस में होती है, किसी दवा से किसी और कारण से हो सकती है, वॉल्यूम लॉस से हो सकती है, किसी का बहुत ज़्यादा खून बह जाए एक्सीडेंट में उससे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो वो घातक है. मतलब बेसिकली ये समझना जरूरी है कि बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा लो ब्लड प्रेशर का बीमारी है, वो जनरली गलत निकलता है. लो ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत अनकॉमन है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत कॉमन है. इसलिए लो ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं. किसको बोल रहे हो आप लो ब्लड प्रेशर? नहीं साहब हमारा 120 से कम ही रहता है, 100 रहता है. 100 लो ब्लड प्रेशर नहीं है. ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम लोग ब्लड प्रेशर 2 होते हैं, एक ऊपर वाला नीचे वाला. ऊपर वाले को SBP बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाले को DBP बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. D से दिल्ली याद रखिए ना, S से शिमला. तो SBP और DBP. SBP ऊपर वाला, DBP नीचे वाला. ऊपर वाला अगर 90 तक भी है और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो भी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है कि नॉर्मल है,
और ऊपर अगर 139 तक चला गया, 140 टच नहीं किया, 140 के नीचे है तो भी नॉर्मल। वो ये जरूर है कि आजकल बता रहे लोग कि जितना 120 के आसपास रखें तो अच्छा है, लेकिन आप पूछ रहे थे कि कितना पे रखना चाहिए। तो जनरली चूंकि स्ट्रोक ऐसे एज में होता है कि उम्र अधिकतर 45-50 या उससे ऊपर ही रहती है, हम कहेंगे कि आप ब्लड प्रेशर को 140 से नीचे रखिए और ऊपर वाला, और नीचे वाला 90 से नीचे रखिए। अब है क्या कि एकदम 139 पे मत टिकाए रहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर दिन भर में घटता बढ़ता है। कभी हम एंक्सस हो जाते हैं तो बढ़ जाता है, कभी हम टॉयलेट कर रहे होते हैं जोर लगाते बढ़ जाता है, कभी पेशाब आ रहा है लेकिन रोके हुए हैं, गेस्ट चले जाएंगे तब जाएंगे, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रात में सोते हैं ब्लड प्रेशर घट जाता है स्लीप में। ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, उसको आप इससे कंफ्यूज ना हो। और बहुत लोग जो बार बार ब्लड प्रेशर लेते रहते हैं दिन भर में, कहते हैं अरे डॉक्टर साहब बढ़ गया घट गया, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप 135 के आसपास रखें तो बढ़ेगा भी तो बहुत कम चांस है कि 140 क्रॉस करेगा, और करेगा भी थोड़ी देर के लिए तो कोई बात नहीं है। नीचे का ब्लड प्रेशर 85 के आसपास रखें तो बहुत कम चांस है कि 90 को क्रॉस करेगा। और जिनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा है, जो कि क्वेश्चन था, इज इट अ कॉज ऑफ वरी? यस, इट इज अ कॉज ऑफ वरी। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहना चाहिए, जैसे हमने कहा कि 85 के आसपास रहना चाहिए, अगर किसी भी हालत में 90 के नीचे रहना चाहिए। ये चीज नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी है, और जिसको स्ट्रोक हो गया उसके बाद के लिए भी है। हम कहते हैं कि लेस देन, माय क्वेश्चन मेरा गलत बोल गया, ऊपर वाला कंसिस्टेंटली 140 होता है। हाँ, तो वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अच्छा, 140 से नीचे रहना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि डॉक्टर्स जो है, ये सब जो बनता है ना कि इतना से नीचे रखिए, इतना से ऊपर रखिए, ये जनरल जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं उस तरह की बातचीत के लिए है। लेकिन एक पर्टिकुलर पेशेंट में कोई रीजन हो सकता है कि उसको 140 से ज्यादा नहीं रहता है तो उसको तकलीफ होती है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ये दोनों खून की नलियां जो है वो मान लीजिए सिकुड़ी हुई है, तो उसको, उस आदमी को ब्रेन में ब्लड पहुंचाने के लिए 140 से ज्यादा प्रेशर रखने की जरूरत है। तो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसी तरह से एडवाइस कर देते हैं। तो कभी कभी इंडिविजुअल केसेस का डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। हम यहाँ पर सारे चीजें आपको बता दें, फिर आप डॉक्टर के पास जाए नहीं, डॉक्टरी बंद हो जाएगी सर, तो वो भी मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर के ऊपर छोड़िए कि किसी पेशेंट को बोलता है कि 150 इसका रखना है, हो सकता है कोई रीजन हो। इन जनरल 140 के नीचे और 90 के नीचे नीचे वाला 90 के नीचे रखने की कोशिश करते हैं। जब भी जो आदमी ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, महीने में एक बार ब्लड प्रेशर जांच जरूर करें, और लिखवा लें। जिस आदमी ने भी चेक किया उससे लिखवा लें कि कितना है। और जो ज्यादा होगा उसको ऊपर वाला होता है, जो कम होता है वो नीचे वाला होता है। तो ऊपर वाले को ऊपर लिखाएं, नीचे वाले को नीचे, या जैसे भी हो आप नोट करा के लाएं, तो हम फिर उसके हिसाब से दवा को आगे पीछे कर सकते हैं। अब है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका कि हम समझते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रोक से संबंध नहीं है, इसलिए हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे। एक सिर्फ लास्ट में ये जो क्वेश्चन है वो, उसके बारे में एक दो शब्द बोलना चाहूँगा कि इन्होंने पूछा कि मन बहुत अशांत रहता है, उसको शांत रखने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसका बहुत संक्षेप में हम यही जवाब दे सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि योगा को पूरे वर्ल्ड के सीन पे जो है इंडिया का कई गिफ्ट के रूप में तैयार कर दिया है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हमें लगता है कि हाँ, ये मन को शांत रखने के लिए ये सब चीजें बहुत यूजफुल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये सब ट्राई करने के बाद भी शांत नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से नहीं मिलें। डॉक्टर से मिल करके आप डिस्कस करें, हो सकता है कि कुछ चीजें डॉक्टर ही बता सकता है, काउंसलिंग से भी बहुत सारी बातें ठीक हो जाती हैं। अगर ये कहेंगे कि इतना मन शांत हो हमारा कि कभी भी ना तो हमें किसी तरह का गुस्सा आए और न कभी खुशी हो और न कभी गम हो,
जिसको गीता में बोला गया है ना कि स्थित प्रज्ञ बोलते हैं उसको, तो वैसा होने के लिए तो साधु संत बनना पड़ेगा। तो वो तो फिर रिटायरमेंट के बाद हम लोग भी करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन था। नहीं, अब क्वेश्चन हम लेना नहीं चाहते।